Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. Perfect. However, last session which we did was because I just went through the playlist and I don't see the history of Hadoop. Neither do we see anything about how cloud came into existence. So I'm a little doubtful. I think I covered that, but I am still doubtful. So let me see how it goes about. So what we'll do is we'll quickly begin the fun. Point number one, anybody who wants to start an organization. Yesterday we discussed partially. Today we will discuss in detail. So as you know, 5 and 95%. What is that? Non-IT and IT. What is it? The percentage market. So you know what is product based and service based. Now you know what is purely an IT, ES and ITO. So we are not going to touch that at all. However, we need to take some example, isn't it? So we will take an example of a company like Amazon. However, now it is an Indian company as well, Amazon India Private Limited. So it is an Indian company now. However, it's originated in United States. So if you want to replace this example with Flipkart or any other example, which is, I mean, you can do it. However, the question will arise. Suppose you replace this with Flipkart. Okay. So if I ask you, is Flipkart a IT company or a non-IT company? So what would you say? Flipkart is purely an IT company. E-commerce is IT. See, धोखा हो गया ना? Confusion. वो YouTube वीडियो ज्यादा देखने से ऐसा ही होता है. हाँ, बॉलीवुड देखने से ऐसा ही होता है, हॉलीवुड देखने से ऐसा ही होता है. लाइफ में सब कुछ ऐसा लगता है एकदम मक्खन है रे. हाँ, और 5 किलो का डंबल उठता नहीं. हाँ, so that's how it works. Now the question is Amazon an IT company? So the answer is yes. So what do? They give you a platform. You matlab kaun? Customer. And they give a platform to the retailers. And they're giving all this in the cloud, which means you don't have to worry about the IT part of it. You just don't. So all the non-IT companies, like वो जो लिपस्टिक पाउडर किताबें वगैरह वगैरह बनाते हैं ना, all non-IT companies, they want services from them. So they're giving the service of IT to all of them, to the 95% of the retailers. Some people, they say we are wholesalers, we are still on Amazon, but they are retailing. Forget about the word wholesale. They are not wholesaling, they are retailing. And what this company is doing, they're giving IT services to all of them. All of them का मतलब 95% of them. क्या दे रहे हैं इनको? IT services. तो say for an example, एक एग्जाम्पल लेते, तुमको हमने बना दिया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर. ये देख के कि यार ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, ये मास्टर्स है, ये पीएचडी है. Oh my goodness, doctor, the doctor, isn't it? तो ये जो PhD है, इसको हमने बना दिया क्या? CTO, Chief Technology Officer. Now the task given to you is, you have to tell me कि ये जो बिजनेस है, ये 95% के लिए हमको क्या लगेगा? Of course, CTO को क्या लगता है? डेटा सेंटर. तो इसको बताना है, what will be the total cost of ownership, what will be the return on investment, what will be
the CTC, total cost to the company. So there are certain questions that has to be answered, isn't it? So say for an example, अभी तुमने 18 साल पढ़ाई किया है, 18 साल, my goodness, तो तुमको इतना तो आना चाहिए कि कंपनी को रन करने आना चाहिए. वो फ्लिपकार्ट नहीं, सॉरी, वो अलीबाबा का ओनर है ना, जैक मा, उसका एक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी तुमको बहुत बुरा लगेगा सुन के, लेकिन सच तो यही है, उसको बदला नहीं जा सकता. तो अगर तुमको उसको बदलना है तो अपनी बच्चों में, अपने औलाद में बदल सकते हो. यस, यू कैन डू दैट फॉर योर चिल्ड्रन. तो उसने एक बात बोला था कि सपोज इफ आई गिव 1 बनाना एंड 100 रुपीज, उसने अपने डॉलर बोला था, मैंने 100 रुपीज बोला. दैट्स ओनली डिफरेंस फॉर अस टू अंडरस्टैंड. मैंने अगर बंदर को दिया तो वो बनाना लेगा कि 100 रुपया लेगा? वो बनाना लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि 100 रुपये से और बनाना खरीद सकते थे, क्योंकि वो कहां से आया है? जंगल से. क्या नाम है जंगल का? स्कूल एंड कॉलेज. तो अगर समझो मैंने एक कॉलेज के बच्चे को पूछा, पुत्र तू जॉब लेगा कि बिजनेस करेगा? तो बोलेगा मैं जॉब करेगा. दैट्स लाइक अ बनाना फॉर अस, because this guy does not know you can buy more bananas with business. बुरा लगा ना? तो अपनी औलाद के टाइम पे याद रखना. अब तुम्हारा तो खत्म हो गया, पप्पा ने तुम्हारी लाइफ का डैश कर दिया है, तो टेंशन नहीं है ना. उसकी शान के लिए मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, ले, गुलाम नौकर बनने वाला है, खुशी से. सो बी हैप्पी अबाउट इट. Are you going to be happy about it? Not anymore. That's the reason you have to do strategic employment. Strategic employment का मतलब काम करो आगे फ्यूचर के लिए, सीखने के लिए. इसलिए नहीं कि लोन लेके ठसना है हमको, उसी को करियर बोल देना है ना. That's not the career, that's the banana. Yes. और इसीलिए देखो स्कूल में हमको सिखाया जाता है एवोल्यूशन थियोरी. We were all monkeys once upon a time. So behave like monkey. It is no problem. And we are all behaving like them. You know, brainwashing technique. That's how it was. That's how it works. So now the question is, to run this data center, what would you need? So पहला उसका आंसर है लोकेशन. कुछ लोग बोलेंगे K-Pax. क्या बोलेंगे कुछ लोग? K-Pax. कुछ लोग बोलेंगे लोकेशन. एंड बोथ आर करेक्ट. भाई लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैक्सिमम डेटा सेंटर्स दे आर इन मलेशिया, दे आर इन तिब्बत, दे आर इन सम पार्ट रिमोट लोकेशंस, जैसे एरिज़ोना बोल के एक जगह है, उसके जंगल के अंदर गूगल का डेटा सेंटर है. क्यों? ऐसा क्यों? उनको जानवर से डर नहीं लगता है, उनको डर लगता है इंसानों से, क्योंकि इंसान वो जानवर है जो कभी भी कुछ भी पागलपन कर सकता है. हाँ, that's how it is. Illogical कर सकता है. That's how it is. So the question is, what location should we choose? So राहुल ने तुमको बोला है, देखो, infrastructure, zero calamity. Yes, Satish Kumar, zero calamity, free from any calamities. अभी समझो मैंने मुंबई में खोल दिया, 27 जुलाई को खबर आई मुंबई डूब गया. डेटा सेंटर खोल सकता क्या? नहीं. अच्छा, वाशी में खोल सकता कि नहीं? खोल सकता दोस्त, क्योंकि वाशी का कभी खबर आया क्या? डूब गया? नहीं आया ना. इसके लिए उधर खोल सकता है. अच्छा, मुंबई में कभी राइट्स हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी ट्रैफिक जैम हो गया, तो कैलामिटी आया कि नहीं है? आया. अच्छा, वहां पे माफिया लोग भी रहते कि नहीं रहते? रहते. सो वी डोंट वांट, है ना. तो ये भाई को बताओ कि वाशी इज नवी मुंबई. इट इज नॉट मुंबई. ओके. Mumbai is dirty, congested. Navi Mumbai is clean, beautiful, and hygienic.
सॉरी टू से दैट बट सच तो यही है यार। जो तुम देखोगे तो पता चलेगा ना, तुम जाओगे तो। So these are something. Infrastructure is good, transportation is good, universities are too many, coming and going is easy for my client, है ना। वहाँ पे हेलीपैड भी बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, and so on. So लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या लगता? पैसा। पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। तो लोकेशन खरीदने के लिए पैसा लगता, कितना लगता अंदाजा? तो say for an example, somewhere around $5 million. तो छोटी मोटी जगह पे तो होने वाला नहीं ना, अगर हो भी गया तो उसके अंदर कुछ चीजें बनानी तो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत दीवारें, isn't it? मजबूत दीवारें। और क्या करना है लोकेशन के साथ? अच्छा, लोकेशन के साथ में हमको क्या देखना था? जीरो कैलामिटी, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको कैलामिटी। ओके, मतलब आंधी तूफान ये सब हमको नहीं अच्छा लगता। इसके लिए डेटा सेंटर वहीं आता। अभी पूना में इतने सारे आईटी कंपनीज क्यों आई, ये समझ में आया? जीरो कैलामिटी, जीरो राइट हिस्ट्री, गुड पीपल, टू मेनी यूनिवर्सिटीज अराउंड। मतलब क्या होता है टू मेनी यूनिवर्सिटीज का? मतलब टू मेनी एम्प्लॉइज, है ना। टू मेनी एम्प्लॉइज, काम करने वाले, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, एग्जैक्टली। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंजीनियर्स। ओके, बुरा लग रहा है ना, लेकिन सच तो यही है यार। वो लोग जो अपने कैबिन में चुपके सी बात करते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, वो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर ओपन ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी। ओपन, सब कुछ खुला बात करो, बिंदास, ताकि सबको पता चले कि सच क्या है, isn't it? और फिर वो अपने डिसीजंस लेने में कोई मिस्टेक ना करे, अननोन पे भरोसा ना करे। ये हमारी आदत होती है ना, अननोन। व्हाट्सएप पे झंड प्रकाश ने भेज दिया, क्या बोलते वो मैसेज, और तुमने उसको समझ लिया नूरुन अला नूर, आहा, तुम्हारा दिमाग प्रकाशित हो गया और तुमने उसको फॉरवर्ड मारना शुरू कर दिया। बाद में पता चला फेक न्यूज है। फिर आता काय करायचं? फिर भी सुधरते नहीं है कुछ लोग, है ना। That's how it works. But these are businesses. They are very cautious about everything. So they think of every aspect because they are going to invest millions and billions. क्योंकि तुम्हारा तो पैसा लगा नहीं ना, बाप का पैसा लगा पढ़ाई करने में, तो तुमको क्यों फिक्र होने लगी? पैसा तो किसने लगाया? सीईओ, सीएफओ, है ना। और बेचारा सीएमओ के सर पे सारा का सारा बोझ कमा के ला के देने का, मामू, isn't it? CTO का काम सिर्फ सिंपल है। However, right now what I'm doing is I'm giving you information, CIO, information, isn't it? With the help of this information, you will be able to take care of the technology, IT, I&T. So university is for employees, manufacturing unit of employees. So we get that. Do you want good electricity? Electricity. Okay, yes. Acha, do you want cooling system? So the answer is yes. मतलब समंदर बाजू में होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वो जैसे हम लोग चावल की खेती करते हैं ना, तो कहाँ करते हैं? जहां बारिश भरपूर होती है वहां चावल की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। तो जो लोग खेती करी वाले होते हैं उनको समझ में आता है इधर क्यों हो रही है। That's how it is. You need a what? The backbone. तो हमारे यहाँ बैकबोन बोला जाता है किसको? द लीज लाइन, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन, जो समंदर से डायरेक्टली तुम्हारे डेटा सेंटर में आता है। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू वांट बैकअप फॉर ऑल दिस? सो द आंसर इज यस, आई वांट बैकअप फॉर एवरीथिंग। बैकअप फॉर एवरीथिंग, बैकअप फॉर एम्प्लॉइज, बैकअप फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बैकअप फॉर कूलिंग, बैकअप फॉर। अब ये कूलिंग कोई ऑर्डिनरी कूलिंग होता नहीं है, इसको स्पेशलाइज्ड कूलिंग बोलते हैं। इसको एयर फ्लो भी बोला जाता है।
Getting the point? And it is on a maintained temperature 24/7. अब तुमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये सब हमको क्यों बताया जा रहा है, ताकि तुमको इस बात का एहसास हो कि डेटा सेंटर बनाने के लिए कितना खर्चा होता है, और खर्चा करने के बाद इसको मेंटेन तो करना है ना, मेंटेनेंस है कि नहीं? तो कैपिटल एक्सपेंस भी है, ऑपरेशनल एक्सपेंस भी है. यू नीड एवरीथिंग. यू नीड अ बैकअप फॉर पावर सप्लाई, जो इसने महबूब ने लिखा है ना, HVAC, दैट इज द हाई अवेलेबिलिटी फॉर बैकअप, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. कूलिंग का भी सेम है, इंटरनेट का भी सेम है. तो इंटरनेट का एक तो फाइबर ऑप्टिक चैनल हो गया, दूसरा क्या हो गया? सैटेलाइट. या डेफिनेटली. सिक्योरिटी. सिक्योरिटी 5 लेयर्स. तो 5 लेयर्स का क्या मतलब होता है? 5 layers का सिक्योरिटी मतलब you have to cross all the layers to reach the server. है कि नहीं? That's how it is. 5 tiers. Yes, you can say that. In this security, we are talking about the hardware. Are we talking about the software? No. सॉफ्टवेयर का भी सिक्योरिटी चाहिए. हार्डवेयर का तो चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी चाहिए. बैकअप, इंटरनेट का बैकबोन है तो उसके लिए सैटेलाइट भी चाहिए. कूलिंग है तो एयरफ्लो भी चाहिए. यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज है तो फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस्ड भी चाहिए. अब लगा ना झटका? अब क्वेश्चन ये कि एक्सपीरियंस लोग कहां से आते हैं पूना में? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. वो लोग आते हैं यूजुअली मुंबई से. व्हाई? पूना में डेटा सेंटर को आके जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए. हाँ, मुंबई में डेटा सेंटर कम से कम 40 साल से. कितने साल से? 40 साल. वेलकम टू इंडिया. बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती ये बात, तो आज पता चल गई तुमको. सो वहां से कौन लोग आते हैं? एक्सपीरियंस्ड. और यूनिवर्सिटी से फ्रेशर्स. And they give you all that gyan and knowledge, and they share information with you, and then you also become experienced. That's how it works. So there are so many people, those who are doing this, getting the point, but they are doing it in different way. We are doing it in different way. That's the only difference. अब इतना हो गया. देखो, लोकेशन के लिए 5 मिलियन लगा था ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, यस. कूलिंग है, यस. इंटरनेट का बैकबोन है, यस. सैटेलाइट है, यस. सिक्योरिटी है, यस. और वो जो बिल्डिंग बनेगी, वो बिल्डिंग भी तो है ना, यस. सो दैट इज पार्ट ऑफ द लोकेशन, द बिल्डिंग, इजंट इट? तो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए कि बारिश जैसी आई तो अंदर पानी टप टप टपकना चाहिए. ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? ना ना ना, है ना? बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि आंधी तूफान आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़े उसे. तो महंगी बनेगी कि नहीं बनेगी? या इट विल बी एक्सपेंसिव, है ना? माइंड वेल. दैट्स द रीजन यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. ओके. सो एज आई ऑलवेज से कि अगर तुमने कभी मौका मिला तुमको देखने का, तो वाशी में डेटा सेंटर्स के ऊपर अगर तुम देखोगे ना, नजर घुमाओगे ना, तो वहां पे स्नाइपर लेके बैठे रहते हैं और उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है. ये 5 लेयर सिक्योरिटी का पार्ट है वो. सो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्या है ऐसा अंदर? एनीबडी नोज व्हाट इज देयर इनसाइड? देखो ना, ये इसका नाम क्या है? डेटा सेंटर. तो राजा कौन है? डेटा. डेटा. हाँ. अच्छा, तो जो एम्प्लॉई इलेक्ट्रिकल का काम करेगा वो भी कौन होगा? इंजीनियर. कूलिंग सिस्टम संभालेगा वो कौन होगा? इंजीनियर. नेटवर्क संभालेगा कौन है? इंजीनियर. सैटेलाइट देखेगा कौन है? इंजीनियर. सिक्योरिटी देखेगा कौन है? इंजीनियर. सब इंजीनियर है भैया. हाँ, लेकिन जो डेटा देखेगा वो भी कौन है? इंजीनियर.
लेकिन जो डेटा देखेगा उसको कितनी पगार मिलेगी? देखो ये सारे सब मिलके सेंटर चलाते हैं और एक बंदा डेटा देखता है ना? that's where we are attacking. That's where you are supposed to aim. That's what you are supposed to secure. That's what you are supposed to nurture. Data preparation, data discovery, data availability, and data analytics. It's all about data. So now you understood one component: capital expense, operational expense. तो अभी इतना तैयार हो गया, तो ये कंप्लीट नहीं है. लेट मी टेल यू, इट इज नॉट कंप्लीट बिकॉज देयर इज अ रेलिंग सिस्टम, है ना? तो जो बड़े बड़े सर्वर्स, मेन फ्रेम्स जब आते हैं ना, तो उनको ऐसा दम लगा के हैया उठा के लेके नहीं जाया जाता. उसको रेलिंग सिस्टम पे ट्रक से डायरेक्ट वो रेल पटरी पे आती है और फिर वो रेलिंग सिस्टम से कहाँ लगता है? अपने जगह पे. वहां तक कि उनको रेल बिछाना पड़ता है. तो कभी मेंटेनेंस के लिए निकालना है तो वैसे ही रेल से निकालेंगे, रिप्लेसमेंट करना है तो रेल से निकालेंगे. तो रेलिंग सिस्टम उनको बिछाना पड़ता है, isn't it? है ना मगजमारी का काम? Yes, it is. So there is a lot of things in this which I am not mentioning. Why? Because इतना काफी है टाइम बचाने के लिए. इसका बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा ये लिस्ट है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, हमको अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. अच्छा लॉजिस्टिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. क्या डिफरेंस है? इसमें हम लोग ह्यूमन को बिठा के लेके आएंगे और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसके लिए अच्छा रोड चाहिए कि नहीं? यस, यू नीड अ गुड रोड. तो तुम वाशी के रोड्स देखो कितने अच्छे हैं, बड़े बड़े भी है. एंड दे डू ऑल दिस ट्रांसपोर्टेशन एट नाइट, ऑल द लॉजिस्टिक वर्क एट नाइट. उनका काम ही रात का है. अगर उनका गाड़ी आ भी गया ना नजदीक, तो वो स्लो चलाएगा. उसको पता है अभी रात होने में थोड़ा सा टाइम है, और स्लो चलाओ. तुमने देखा होगा कभी कभी रास्ते में ट्रक कभी कोई लोग साइड पे लगा देते हैं, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है दिन में आने का. कम एट नाइट, लेट नाइट. That's how it is. Multiple reasons. Traffic hai, security hai, isn't it? So many things. Now, the question is, तुमने इतना मगजमारी किया, इतना सब कुछ किया और डेटा सेंटर को रेडी किया. किसके लिए किया? तो आंसर इज डेटा. But you can't bring data so easily. You know why? Because the condition is first you have to bring the systems. Sorry, first you have to bring the networks up and running. तो जो आर्किटेक्ट होगा ना, किसका आर्किटेक्ट? नेटवर्क आर्किटेक्ट, CCIE. वो आके बोलेगा कि यस, my team has completed the work, everything is pinging and everything is well secured and we have taken care of the firewall and blah blah blah, lamba long list short, VPN is checked and blah blah blah. So please, network is ready. Ultimately it is ready. फिर उसके बाद systems को बोला जाएगा कि let's bring the systems. तो एक काम की बात समझ लेते हैं. Suppose I am taking network. You tell me, should I take Cisco or should I take Juniper? हो गया ना झगड़ा. तो इसके लिए क्या होगा? These people, they will give this work to CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर. वो एक व्हाइट पेपर लेगा नेटवर्क के ऊपर, व्हाइट पेपर पढ़ेगा, उसके बाद बोलेगा देखो भैया, हमारा जो है ना काम फिलहाल, हमारा जो हमको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सर्व अमेरिकन प्रोजेक्ट्स, वी विल गो विद सिस्को. समझो CIO ने बोला कि वी आर सर्विंग ऑल यूरोपियन कंपनीज, विल गो विद जुनिपर. तो तुमको एक बात समझ में आई कि जियो लोकेशन एंड जियोग्राफी मेक्स द डिफरेंस. जियोलोकेशन एंड जियोग्राफी मेक्स द डिफरेंस. मतलब अगर मेरी जियोग्राफी US को सपोर्ट करने वाली है, तो आई विल नॉट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर सिस्को.
But if it is supporting Europe, I will go with Juniper. But if it is budget constraint, I will go with Juniper. If you think Kinney Cisco is leader of IPv4 and not IPv6, you are mistaken. Juniper started early in IPv6, of course, लेकिन जो सिस्को को देखो, ब्रिलियंस सिस्को के पास है. सिस्को को ये बात पता थी कि 2017 में कोई भी करेगा नहीं, तो मैं काहे को फालतू में जल्दी करूं, और वैसा ही हुआ. That means Cisco had some internal information, because all the governing bodies, ruling bodies of these networks are governed by United States. तो उसको फायदा मिल रहा है ना सिस्को को. तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स है जिसको सोचने के बाद they will take the decision. They can go with HP also. HP is also good in networks. They can. We don't know. Nobody knows. तो अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है कि भाई एक आर्किटेक्ट होगा जो आके कैबिन में बोलेगा कि यस योर नेटवर्क इज रेडी, है ना. एक सिस्टम्स का आर्किटेक्ट होगा, वो बोलेगा कि योर सिस्टम्स आर रेडी. सो सिस्टम्स मुझको कहाँ से लेना है? मे बी आई कैन टेक फ्रॉम IBM, I can take from EMC Square, I can take from Oracle, Sun Microsystem, you know, I can take from a lot of other places. So say for example, your systems are also ready. Both are ready. Then what? Network हो गया, system हो गया, storage. Systems में mainframe आ गया, servers आ गया, सब कुछ आ गया. उसके बाद क्या है? Storage. उसके बाद security. अब ये कौन सा सिक्योरिटी है? ये नेटवर्क का सिक्योरिटी है, सिस्टम का सिक्योरिटी है, स्टोरेज का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का सिक्योरिटी है. हाँ, रियल में दैट्स हाउ इट वर्क्स. सिक्योरिटी इज आल्सो सपोज्ड टू बी सिक्योर्ड. उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके भी लीडर्स हैं कि नहीं है? या इसके भी लीडर्स है. यस, नेट ऐप, स्टोरेज का लीडर नेट ऐप है, isn't it? Okay, EMC Square, even IBM. It depends from company to company. We don't care about that. लेकिन तुमको एक बात तो समझने में आ गई कि यार इतनी सारी कंपनी घुसने वाली अंदर, एक से फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, फिर सिक्योरिटी की कंपनी होगी, फिर एक बैकअप की कंपनी होगी जैसे कि वेरिटास. अभी इतनी सारी कंपनीज अंदर घुस गई. अब सोचो मैनेजमेंट का क्या खिचड़ा पकड़ने वाला है, डायरेक्टर का क्या भेजा उबलने वाला है. जस्ट इमेजिन. तुमको किस बात की फिक्र है? वो मैंने कल बताया था ना, 31st लॉग आउट बटन, लोन आणि कॉलीग, दैट्स इट. लाइफ इज सेट है कि नहीं? और फ्राइडे के दिन, फ्राइडे की रात को क्या मिलना चाहिए? इंग्लिश. और मंडे मॉर्निंग उतारा. लाइफ इज सेट, है ना. पैसे इतने आ गए कि बियर पी के ही चढ़ गई है. लाइफ इज सेट. दैट्स हाउ इट इज. नाउ इफ आई वांट टू वर्चुअलाइज all of this, then I will need virtualization like VMware. You're right, I agree with you. तो ये वर्चुअलाइजेशन में अभी नहीं जाएंगे हम लोग. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो हमने अभी डिस्कस किया इतना, इसको कहते हैं बेयर मेटल. क्या कहते हैं इसको? बेयर मेटल इंफ्रा स्ट्रक्चर. सैंपल देखने का है? चलो दिखा देता हूं. मैं बोला तो मानो मत. या इफ आई से डोंट बिलीव, because I don't believe myself. That's how it works for me. So what we'll do is we will go to Cloudera reference architecture. मैं बात किसकी कर रहा हूं? इंफ्रास्ट्रक्चर की. और डॉक्यूमेंट कौन सा दिखा रहा हूं? आर्किटेक्चर का,
है ना, ये पॉइंट याद रखने वाला है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। क्या लिखा है इधर? बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट्स। चलो देखते डॉक्यूमेंट के अंदर जाके। वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दिया? दिखाई दिया ना, ठीक है, पहुंच गए। अब ये डॉक्यूमेंट समझ में तो आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ये स्पाइन नेटवर्क है, सी, एंड इन दिस भेजा विल उबलिंग एंड उबलिंग। आई एम scrolling and scrolling. Just relax. Why? Because बेयर मेटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। तो हमारा जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लो ध्यान से। एवोल्यूशन ऑफ अ डेटा सेंटर। अभी मैंने जो बात किया वो किसकी बात किया? बेयर मेटल की बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मैं तुमको पूछता हूं कि व्हाट इज योर एनवायरमेंट? तो तुम्हारा आंसर है वी आर करेंटली इन अ बेयर मेटल एनवायरमेंट। तो इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्टली कि बेयर मेटल एनवायरनमेंट में है तू, तेरी आधी जिंदगी टिकट टिकट बनाने में निकल जाएगी। कैसे? नेटवर्क वाला सिस्टम्स वाले को टिकट ट्रेस करेगा, सिस्टम्स वाला नेटवर्क वाले को, बीच में फायरवॉल वाले को, बीच में स्टोरेज वाले को, देन सिक्योरिटी का, देन ब्ला 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 एंड देन ब्ला 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 एंड देन ये सिक्योरिटी ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन वाली है। सो ये सब टिकट ट्रेस करते करते इनकी जिंदगी निकल जाती है। मतलब वेयर इज द डेटा? सो यू विल से इट इज ऑन स्टोरेज। अब तुम में से कौन है जिसने ध्यान से कल का सेशन सुना था, वो आज पकड़ में आएगा। कैसे? ये जो स्टोरेज लिखा है मैंने, तुम बताओ कि कौन सा डेटा इसके ऊपर रखा हुआ है इस वक्त एट दिस पोजीशन? रॉ डेटा, वेरी नाइस। रॉ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड इज ऑल्सो द राइट आंसर, एक्सलेंट, है ना। इसका मतलब ये होता है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड का डिस्कशन अभी हुआ नहीं है। यस, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब ये सब रेडी हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या लेके आते हैं? गोल्ड, द न्यू ऑयल। ऐसा तुम बोल सकते हो ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। यस, देन वी ब्रिंग द डेटा। कौन सा डेटा? डिस्टिल्ड डेटा। Distilled data, isn't it, which is important to us. So how do you bring that? Of course, you have to do something called ETL: extract, transform and load. And then what? Database. तो ये जो लोड है, isn't it, ये जो ट्रांसफॉर्म है, so when I'm extracting unstructured data, I'm transforming, it is now semi-structured, I'm loading, now it is structured. So the moment it becomes structured, can I call that a database? What do you say, yes or no? Yes, now it is a database. So this is where the gold is: refined, polished, distilled. They can use multiple words for this. Okay, multiple words. Filtered. Filtered जल्दी बोलेंगे नहीं, वो एनालिस्ट लोग बोलते हैं। Distilled is the right word. Okay, this is what you can ask questions to this data. You cannot ask questions to data on the storage. You can't ask that questions. You can ask questions over here. Okay, it's like, छोटे बच्चे को तुम क्या सवाल पूछोगे? अभी तो रॉ है, रॉ, लेकिन अब वो ग्रेजुएट बन गया, अब उसको क्वेश्चन पूछ सकते कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर समझो मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं और वो मुझको बोले आई एम अ फ्रेशर सर, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब वही गुस्सा इनको आता है। किनको? इनको, ये मम्मी को, पापा को, मामू को, चाचा को, सबको यही गुस्सा आता है। इसको सवाल पूछा, आई एम अ फ्रेशर सर, गरीब बन जाता है ना।
वो बियर की बाटली पीने के टाइम पे कैसा नाचता है? अभी क्यों नहीं नाच रहा? तू ग्रेजुएट है ना तू. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो यहाँ पे बीच में मैंने जगह छोड़ दिया ना, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेयर मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, व्हाट इज माय एनवायरनमेंट? तो मैं बोलूंगा बेयर मेटल. तो इसको क्या लगता है? दो चीज, केपैक्स, ओपैक्स, कैपिटल एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस. इन टोटल कितना लगा? तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, $10 million. ओके, एग्जांपल है ये. ऑफ कोर्स इट इज मोर देन दिस, बट वी विल टेक अ स्मॉल डेटा सेंटर. $10 million का एग्जांपल है ये. ओके, तो इसका मतलब किसी फंडिंग से इन लोगों को फंड लेना पड़ा होगा आज से 40 साल पहले, जिससे कि उन लोगों को ये इतनी मगजमारी करके वो लोग कहाँ पहुंचे? वो लोग पहुंचे डेटा सेंटर में. नाउ दे हैव देयर ओन डेटा सेंटर. नाउ यू टेल मी, आफ्टर इन्वेस्टिंग $10 million, सीएफओ क्या बोलेगा? ये पप्पा पप्पा बोलेगा अगर तूने कमाया नहीं ना, एक दिन भी तूने कमाया नहीं ना, तो उसको लॉस में गिनूंगा मैं. इसीलिए जवान बेटा जब घर पे बैठा होता है ना, तो पप्पा को बहुत गुस्सा आता है. लफौड़िया कुछ कर रहा नहीं है इधर, घोड़े की तरह खा रहा है और बैठ रहा है खाली बस, मुर्गे के जैसा अंडा दे रहा है. नहीं नहीं, मुर्गी देती ना अंडा तो चलो, लेकिन पापा लोग कुछ भी बोल सकते हैं. पापा जो है, नाउ सेम सिचुएशन हमारा भी होता है. प्रोजेक्ट अगर कुछ काम पैसा नहीं कमा रहा है, यू आर इन डेंजर, दे विल थ्रो यू आउट. या दैट्स हाउ इट इज. वो लोग तो मुंह पे बोलते हैं, अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखे. This is business. We deal in profit and loss. So when we are investing this amount, don't you think this is just the capex? What about the opex? भाई ये तो सिर्फ capex है. कैपिटल एक्सपेंस लगाया मैंने इतना सब करने के लिए. इनकी पगार चालू है, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, कूलिंग चालू है, सब कुछ चालू है. तो 10 मिलियन का तो मेरे को एक वन टाइम एक्सपेंस था वो. लेकिन मेरे को $1 million या 1 million अप्रोक्सीमेटली क्या होगा मेरा? ऑपरेशनल एक्सपेंस, isn't it? और 10 मिलियन क्या था मेरा? कैपिटल एक्सपेंस, which is I have to pay possibly every month, possibly every quarter, depends कि तुम्हारे पास कॉस्ट कटिंग का क्या प्रोग्राम है. तो अब ये वाली बात समझ में आई कि बेयर मेटल में मगजमारी बहुत है और खर्चा भी बहुत है, तो प्रेशर भी बहुत होगा. प्रेशर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जब सिस्टम्स मंगाते हैं ना, सिस्टम्स, तो मेन फ्रेम का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं. तो हमको समझो, बिकॉज हमने जो एग्जांपल लिया ऊपर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन लिया, राइट? सो से फॉर एग्जांपल आई वांट टू break this into small systems instead of buying a mainframe to save my money. So what I will do is I will buy somewhere around 500 Dell machines. 500 what? Dell machines. Yes. And then you will say कि you will need some machines for मतलब अगर ये इसको कुछ खराबी हो गई तो रिप्लेसमेंट एंड बैकअप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, POCs एंड टेस्टिंग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल. तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तेरे को उसके लिए कितने चाहिए? तो मुझको उसके लिए भी समवेयर अराउंड 300 चाहिए. सो मैंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये HP का ले लिया, सस्ता, isn't it? Okay. Now once I have so many machines, they are all up and running. So what is the resource I'm going to get from this? So तुम बोलोगे these are all in total 800 machines. Okay, machines. ओ तुम्हारे केस में सर्वर. देखो
जब मैं सर्वर बोलूंगा ना, सर्वर, तो ये एक्चुअली इनकरेक्ट है. सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर, तुमको मैंने बताया था ना. When you install this software on a hardware, you can call that hardware also a server. That's not a problem because technicians do that. So if you are a technician, then तुम इस मशीन को सर्वर बोलोगे. If you are an administrator, तुम सर्वर को सर्वर बोलोगे, मशीन को मशीन बोलोगे. That's a difference. If you are a developer, you're free to say what you want. गवंडी जो है, आजादी है, जो चाहिए बोल भाई, टेंशन नहीं. लेकिन डेटा सेंटर में जो टेक्नीशियन काम करता है, जिसका टूल क्या होता है, पकड़, पाना, हथौड़ी, एंड वो छोटे मोटे गैजेट्स है ना, स्क्रू ड्राइवर. These people, when they assemble the system in bare metal environment, so they tend to say servers. However, administrators will call them machines, क्योंकि हमारे को पता है कि सर्वर किसको बोलते हैं, उनको नहीं पता है. तो उन लोगों ने किसी को बोलते हुए सुन लिया, टेक्नीशियन, अच्छा वो भी सर्वर बोलता है, चलो ठीक है, इट्स ओके, कांट डू एनीथिंग. Now the question is, what is the resource that you're getting from here? So someone is saying, see, Nikhil is saying CPU, RAM, HDD. Okay, एक्चुअली आज के जमाने में SDD चलती है, लेकिन इसको आज भी HDD बोला जाता है. ऐसा क्यों? ट्रेडिशनल, पुराना है ना वो, सब डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस दैट ऑल. That's why we also say the same thing. Okay, and then comes your NIC. NIC is your network for your storage, for RAM, and for CPU. For some people, those who are not computer science graduate and those who are mechanical, those who are other graduates, तो तुमको ये एक्चुअली डिटेल में पता नहीं है कि CPU क्या होता है, RAM क्या होता है exactly, what are the controllers and what is the FSB and what is the BSB and what is the cache and what is the CPU does, what actually it does, what is the cycle and what is the refresh rate, what is the bandwidth, what is the latency, what is the throughput. तो ये सब हमारे हार्डवेयर के टॉपिक में हम लोग निपट लेंगे. हार्डवेयर का टॉपिक आएगा तब, ठीक है ना. लेकिन आज क्या है, खाली इतना समझना है कि दीज आर रिसोर्सेस, बस. जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ना, वैसे ये सर्वर रिसोर्सेज है, if you want to say in the technician's bhasha. Okay, now you understood that we have resources. अब एक सवाल है कि तुमने जब ये 500 मशीन लिया था, तो सीपीयू के अंदर कितने कोर्स थे, तुमने रैम कितना लिया था, isn't it? And what was the RAM, whether it was DDR3 or was it 4? तुमने जो स्टोरेज लिया है, तुमने जो निक लिया है, इसका बैंडविड्थ कितना है, इसका थ्रूपुट कितना है, isn't it? So we need to have answers for this, right? We need to have answers for this. तो उसका तुमको टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि that is taken care by whom? Dell. तो what are we taking care of? मशीन आया भैया, मशीन आ गया, उसको लगाया टेक्नीशियन ने, हमने उसमें सर्वर इंस्टॉल किया, धंधा चालू. तो फ्लिपकार्ट के लिए कौन सा सर्वर तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा? चलो देखते हैं कौन जवाब देता है. लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा. Red Hat is a brand, Apache is a licensing body. 40 साल पहले Zen और Hadoop पैदा नहीं हुआ था. हाइपरवाइजर नो.
बाप रे, तुम लोग के जवाब देख के मेरे को तो डर लगने लग गया। हाँ, देखा, साहिल ने बताया वेब सर्वर। और किसने बताया? ख्वाजा मोइनुद्दीन। ओह माय गॉड, वेब सर्वर। सी, सो व्हाट सर्वर्स वी वांट? वेब सर्वर। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? फार्म। क्या बोलते हैं इसको? फार्म, FARM, वेब फार्म। खेती बोलते हैं ना, खेती, खेती बाड़ी। हाँ हाँ, 500 झाड़ लगाया महीने। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी ऐसे बोलते हैं, इट्स अ वेब फार्म, वेब फार्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को एक क्वेश्चन पूछा, ओके, कि हमारा जो ये बेयर मेटल एनवायरनमेंट है, इसमें हमने 500 सर्वर क्यों लिया, 600 क्यों नहीं लिया, 400 क्यों नहीं लिया, अच्छा 555 क्यों नहीं लिया? तो उसका आंसर क्या होगा, तुमको बताना है। हाँ, पीक आवर्स बोलते हैं उसको, पीक ट्रैफिक इज नॉट द वर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो अभी से फॉर एन एग्जाम्पल, इसको सब लोगों को तो समझ में नहीं आया ना ये क्या मीनिंग है इसका। तो सबको समझ में आने के लिए, जिस जमाने में फ्लिपकार्ट ने धंधा शुरू किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, उस जमाने में उसको ये पता था कि कितने कस्टमर्स आने वाले? नहीं। तो फिर वो सर्वर कैसे खरीद रहा है, काय को इतना इन्वेस्ट कर रहा है? पगला गया है वो, इजंट इट? नहीं नहीं नहीं, वो पगला नहीं गया है, वो बिजनेस स्कूल में गया है। उसको पता है बिजनेस कैसे करते हैं, जैसे तुमको पता है नौकरी कैसे करते, एग्जैक्टली वैसा उनको पता है बिजनेस कैसे करते। तो उनको एक सर्वे कंपनी में क्या करना पड़ता है, सर्वे का पैसा देना पड़ता है कि यू डू सर्वे फॉर अस। तो सर्वे कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले दे विल फाइंड आउट कि हाउ मेनी इंटरनेट प्रोवाइडर्स आर देयर इन द कंट्री। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, प्रोवाइडर्स किसके, इंटरनेट के, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। उसके बाद हाउ मेनी पीपल बाय कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन शॉर्ट पीसीज, हाउ मेनी पीपल बाय दैट। तो इनको जवाब मिला कि सी देयर आर XYZ amount of providers and there are XYZ amount of computers available in the whole country. फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन, find out how many people those who have a computer and they are tech savvy. अब टेक सेवी का मतलब ये होता है कि ये वो लोग होते हैं जो इंटरनेट की दुकान पे भरोसा करेंगे। सो टेक सेवी, थोड़ा सा टेक्निकल। तो ये सर्विस, ये जो सर्वे कंपनी है ना, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फाइंड आउट किया कि कितने लोग हैं जो क्रोम डाउनलोड करते, फायरफॉक्स डाउनलोड करते, अदर ब्राउजर्स। तो सर्वे में क्वेश्चन डाल दिया, विच ब्राउजर डू यू यूज। तो अगर तुमने बोला इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब यू आर नॉट अ टेक सेवी पर्सन, यू डोंट नो व्हाट इज अ ब्राउजर इन फर्स्ट प्लेस। ओके, if you say Chrome, Firefox, anything else, isn't it, that means you are a tech savvy person. अब ये जो टेक सेवी है, ये बंदा जो है टेक सेवी, ये कितने लोग हैं? तो उन लोगों ने आंसर दिया कि इंडिया हैज समवेयर अराउंड 3% टेक सेवी पीपल। अब जरा बताओ मुझको, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का 3%? जरा बताओ, देखते मैथ्स। 4.2 करोड़, 4 करोड़। मतलब ये है कि भाई हमारी 100 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ लगभग, 100-150 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ लगभग हमारे कस्टमर बन सकते हैं। भैया अगर 4 करोड़ ने 1 रुपया भी दिया रोज का,
तो मतलब ऐसा प्रोडक्ट बेचूंगा मैं जिसमें 30 रुपीज प्रॉफिट रहेगा, बस दैट्स इट। महीने में एक बार भी खरीदा तो मैं तो बन गया करोड़पति। दैट्स हाउ इट वर्क्स, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट भूल गए, वो भी तो मिलियंस में है ना। सो यहाँ पे इनको आंसर मिला 3%। सो आर दे हैप्पी अबाउट इट? या दे आर वेरी हैप्पी। जैसे ठीक है, इनको सर्विस देने के लिए मैंने 5000 मशीन शॉर्टलिस्ट किए हैं। फिर इन लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर 5000 मशीन तुमको चाहिए तो 24 घंटा चालू रहेगा क्या वो? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। बोला नहीं नहीं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कब होती है इसका एक नया सर्वे लगाओ। ठीक है, वो भी नया सर्वे कंपनी को और एक सर्वे मिला। दे स्टार्टेड डूइंग सर्वे इन ऑल डिफरेंट सिटीज, इन डिफरेंट कॉलेजेस, इन डिफरेंट वो जो भी है, ठीक है ना। दे डिड ऑल द सर्वेज एंड दे केम अप विद अ रिजल्ट। मैक्सिमम पीपल दोज हु आर अर्निंग, से फॉर एन एग्जांपल मैकडोनल्ड कहीं पर तुमको दिख गया ना, तो समझ जाने का इसके आजू बाजू में कम से कम 5 एटीएम है। भैया अगर आजू बाजू में 5 एटीएम है, इसका मतलब क्या होता है? मैकडोनल्ड है इधर, केएफसी है इधर। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि जो एटीएम कंपनीज होती है लाइक आईसीआईसीआई एंड ऑल दिस कंपनीज, बैंक्स, इनका बोलना है कि जब हमारे 25,000 कस्टमर होते या 5,000 कस्टमर होते, कम से कम 5,000, तो हम वहां पे तो 5,000 into 5 ATMs, 25,000 customers, those who are earning money, those who have account, तो 20,000 भी हुए। अगर 5,000 समझो हमने अकाउंट्स को छोड़ भी दिया तो भी चलेगा। अब तुम देखना शुरू करोगे ना, अरे यार जिधर भी एटीएम होता है उधर मैकडोनल्ड क्यों खोलता है? ऐसा नहीं है। वो लोग बिजनेस स्कूल से आए, उनको पता है धंधा कैसे करते। बिजनेस सर्वे कंपनी विल टेल देम this is how you are going to do the business. Sorry, these many machines you will require in the peak hour. तो वो पीक आवर कभी का निकला? सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे या संडे, तो स्टार्ट्स फ्रॉम फ्राइडे। लेकिन उसका जो पीक आवर आता है वो आता है यूजुअली ऑन संडे। हम when does it come? On Sunday, because it's weekend. तो उनको पता चल गया संडे के दिन सबसे ज्यादा कस्टमर्स हमारे वेबसाइट पे आएंगे, वेब फार्म। तो हमको कम से कम 500 सर्वर 24 घंटा चला के रखना पड़ेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ बेयर मेटल। उस जमाने में क्लाउड नहीं हुआ करता था, वर्चुअलाइजेशन नहीं हुआ करता था, तो 500 मशीन 24 घंटा चालू, 300 मशीन 24 घंटा चालू, शॉर्टकट में 800 मशीन 24 घंटा चालू। तो इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस 24 घंटा चालू। फिर वेयर एंड टेयर, मतलब मालूम है, चीज खराब भी तो होती है ना, रिप्लेसमेंट, उसका भी खर्चा चालू। कौन भरेगा? कस्टमर। लेकिन मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किया? पीक आवर्स से। पीक आवर, isn't it? So now when we are running so many servers here in this data center, do you think we want to scale up or we want to scale down? So we do have an option of scaling up. So अगर हमने समझो स्केल अप किया और स्केल डाउन किया, तो हमारा जो वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर, ये बढ़ जाएगा। It will increase because these are servers. You need to keep them on. उसका मेंटेनेंस ऑन में ही होता है, शट डाउन करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ शट डाउन। याद रखना इस पॉइंट को। तो वेयर एंड टेयर बढ़ाऊं या तो फिर मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ाऊं, तो कंपनी का डिसीजन होता है वो कि या स्केलेबल है, बट इट्स ओके, वी विल स्केल ओनली व्हेन वी गेट दी
पीक आवर। तो मतलब ये सैटरडे संडे को हमको पीक आवर में कितने मिले, तो हमने 500 मशीन उसके हिसाब से रखे थे। लेटर ऑन वी इंक्रीज दैट टू 600. Now can we go back to 500? No. Now you have to continue with 600. तो मैनेजमेंट बोलेगा एक एडवर्टाइज रन कर ताकि ज्यादा कस्टमर लोग आवे, नहीं तो मेरे 600 मशीन क्या हो रहे, क्या हो रहे, वेस्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। सो डू वी वांट एनी वेस्टेज? नो। नाउ एक और बुरी खबर, व्हेन आई आस्क एनी एडमिनिस्ट्रेटर कि तुम्हारा जो सीपीयू और रैम है इसका जो यूटिलाइजेशन है, we are looking for an optimal utilization. Okay, we are not looking for recommended reutilization. Okay, we are not looking for recommended, we are looking for optimal. Are we looking for minimal utilization? No, we are not looking for minimal, because इसमें क्या होगा, wear and tear बढ़ जाएगा, wear and tear, चीज खराब होना शुरू हो जाएगी। Are we looking for recommended? No, because इसमें मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, चीज चलेगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। व्हाई? सो दैट माय परफॉर्मेंस एंड माय वेयर एंड टेयर इज नॉट इफेक्टेड, नॉट एट ऑल। तो एक प्रॉब्लम आया ना इसमें, ऑप्टिमल के चक्कर में जब हम पूछते हैं उनको व्हाट इज यूटिलाइज्ड, किसको, एडमिन को, तो एडमिन का आंसर है 30% is utilized. तो तुमको क्या सुनाई दिया, तुमको सुनाई दिया 30% यूटिलाइज्ड, है ना। मैनेजमेंट को सुनाई दिया 70% अनयूटिलाइज्ड, वेस्टेज। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल ग्रेजुएट के लिए। मैंने एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी कितने की, 1 करोड़ की, मेरे गैराज में लगा दिया। मैं घूमने को जाता सैटरडे और संडे, मंडे वेस्टेज। मैं ऑफिस में कैसे जाता, घर पे से काम करता ना रे भाई, वर्क फ्रॉम होम। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, गाड़ी खड़ी है, वेस्ट। तो मेरे को कोई आके बोला जूम जूम कार पे डाल दो इसको, तो जूम पे तुम पैसा कमा सकते इससे। तो आइडिया तो अच्छा लगा सुनने के लिए, यस आई एग्री, लेकिन रिस्क बढ़ गया कि नहीं, रिस्क बन गया, बढ़ गया। फिर किसी ने बोला कि यार तू इतना कम चलाता है, तेरे को रीसेल अच्छा मिलेगा, लेकिन मैकेनिक बोलेगा नहीं, तेरा तो वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा, खड़ी रखेगा गाड़ी तो तेरा वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा, देखो मेंटेनेंस ज्यादा भरना पड़ेगा। किसी ने बोला कि नहीं यार, इट इज रिकमेंडेड कि यू एटलीस्ट गो एवरी डे, थोड़ा सा चालू कर बंद कर, चालू कर बंद कर। तो उसमें मेरे को कोई परफॉर्मेंस मिल रहा है क्या, चल रही क्या गाड़ी, गैराज में खड़ी है, चालू बंद, काय का परफॉर्मेंस, जीरो। सो ये खबर किस तक पहुंच गई, मैनेजमेंट तक। मैनेजमेंट को पता चल गया कि हमारा जो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, दिस इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज इट, तो प्रॉब्लम को अपन ऐसा करेंगे ना, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, है ना। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल में अभी 30% से ज्यादा मैं ऊपर जा नहीं पा रहा हूं, बस सर्वर के ऊपर इतना ही लोड है। तो इन लोगों ने क्या बोला उस जमाने में कि काम करते हम लोग, तुम्हारा जो एक मशीन होता है ना, ये एक मशीन है, इस मशीन में ये नीचे का जो लेयर है ये क्या है, हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को संभालने के लिए क्या है,
फर्मवेयर। इसके ऊपर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लिनक्स। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या है, एक ऐप है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम क्या है, वेब सर्वर। तुमने बोला एक काम कर, तू इस पे ना डीएनएस भी डाल दे, इस पे टॉम कैट भी डाल दे। तो मैंने इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया कि नहीं। पहले कितनी थी, 1, अभी कितनी है, 2 and 3। फिर किसी ने बोला इसमें सांबा भी डाल दे फॉर विंडोज शेयरिंग। तो मैंने कितनी सर्विसेज डाल दिया इस पे, 4 सर्विस। फिर मेरे को उसने पूछा क्वेश्चन, नाउ इज इट ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड। तो मैंने उसको बोला भाई 4 सर्विस है, दिस इज नॉट गोइंग अबव 40%, बिकॉज सब कुछ एक टाइम पे यूज नहीं होता ना, सब अलग अलग टाइम पे यूज होता है। तो उन लोगों ने बोला अब ये प्रॉब्लम 60% वेस्टेज का है। तो एक सोल्यूशन तो मिला कि नहीं मिला, मिला मिला, एक छोटा सोल्यूशन तो मिल गया। तो ये तुमको एक प्रॉब्लम समझ में आया। अब नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इफ यू हैव टू से दैट इन वन वर्ड, व्हाट वुड दैट बी। हाँ, बेयर मेटल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसका मतलब ये जो बंदा है ना, मोइज शेख, और कौन है, गुफरान, बहुत कम होता है वैसे। वैसे मोइज शेख के बारे में बोल सकता हूं मैं एक कंफर्म बात, कि इसका रिलेशन इसके पप्पा के साथ बहुत अच्छा है। सच बोल रहा हूं। सी, इन क्वेश्चन when you give answer, you actually reveal your physiology. You reveal your physiology. That's how life is. तुम्हारी जिंदगी के 50 साल निकलेंगे ना तनवीर, तुमको पता चल जाएगा ऐसा क्यों। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, वो क्या है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड प्रॉब्लम, मेरा जो ये मशीन है इसमें टोटल 2 हार्ड ड्राइव है, और मेरा जो डेटा है उसको मैं क्या करता हूँ, स्ट्राइप करता हूँ, स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग, कल मैंने बोल दिया था आज का सेशन थोड़ा बड़ा है, isn't it? So I am doing स्ट्राइपिंग, मतलब एक टुकड़ा इधर डाल दिया 50 MB का, और एक टुकड़ा इधर डाल दिया 50 MB का, एंड इसको नाम दिया मैंने, टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, रेड 0। 0 का मतलब ये होता है कि आई डोंट हैव एनी बैकअप। If one hard drive fails, all data is lost. तो ये जो वर्ड है डेटा लॉस, ये सुन के पापा खुश होंगे क्या, नहीं नहीं। तुम घर पे लेट आए, सर्विस लॉस, चलता। तुम घर पे लेट आए और अपना बटुआ भूल गए, घुमा दिया, है ना, क्योंकि गर्लफ्रेंड को देखने में इतना बिजी थे कि नजर ही नहीं आया, कुछ ध्यान ही नहीं था, मगन हो गए, तो डेटा लॉस। उसमें आधार कार्ड, लाइसेंस, एवरीथिंग इज गॉन। पप्पा गेट्स वेरी एंग्री एट सच सिचुएशन। सर्विस लॉस चलता है एक बार, डेटा लॉस नहीं चलता, क्योंकि उसमें मगजमारी बहुत है ना वापस रिकवरी का। दैट्स हाउ इट इज। सो इन दिस केस तुमको कोई ज्ञानी मिल गया, उसने बोल दिया कि यार तू एक काम कर, पहली बार तू स्ट्राइपिंग कर क्यों रहा है। तो तुमने उसको जवाब दिया, देख भाई अगर मेरे पास सिंगल हार्ड ड्राइव है, सो आई एम गेटिंग अ स्पीड इशू, मेरा मशीन बहुत स्लो चलता है। तो मैंने उसको 2 हार्ड ड्राइव में बांट दिया। तो मेरा जो डेटा है 50 MB 50 MB, विच मीन्स मेरा टोटल डेटा कितना था, 100 MB। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस डेटा ऑन हार्ड ड्राइव। तो इसका राइट फंक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट फंक्शन होगा।
So when I am going to write on the hard drive, it is going to write with the speed of hard drive. So वो speed हम say for an example, we are taking an example that will be 50 Mbps. And when I do this 50-50, so you will say on one hard drive, it will take 2 seconds to write this amount of data, 100 MB. But when there are two hard drives, it will take, तो यहाँ पे HDD लिख देते हैं ना ऊपर. When I have one hard drive, 2 seconds. Two hard drive, it will take 1 second. So what did I achieve? I achieved speed. But there is a problem here. You achieved speed, but you did not achieve, you don't have any second copy, which means if this hard drive goes down, you have data loss. Management doesn't like that. तो उन लोगों ने तुमको बोला कि do something about this. तो तुमने बोला कि ठीक है, I will do something about this. What we'll do is, if one hard drive goes down, I am going to mirror the copy somewhere else. अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है कि जब मैं इस कॉपी को मिरर करूंगा यहाँ पे सेम मशीन के ऊपर, and if this machine goes down, so I have a copy here, so I have speed as well as what do I have? I have durability. What do I get? I get durability. इसको durability बोला जाता है. बहुत छोटी सी ड्यूरेबिलिटी है, बट है. ओके, और इसको क्या बोला जाता है? RAID 0+1 टेक्नोलॉजी का नाम है. सब पुरानी टेक्नोलॉजी, याद करने की भी जरूरत नहीं. खाली अगर एक बार समझ में आ गया कि हमारे प्रॉब्लम्स कैसे कैसे, तो तुमको इज्जत आएगी किसकी? 2022 की. हाँ, अब 2022 तुमको ऐसा लग रहा है सबसे बकवास है. ये सेशन के बाद तुमको लगेगा बहुत अच्छा है. 2022 इससे अच्छा साल नहीं. मेरा चैलेंज है ये. रिलैक्स. सो now the question is, we are doing mirroring of that data. तो अभी क्वालिटी वाले जो होते हैं ना मैनेजमेंट में, वो हर चीज का एक प्रॉब्लम का एक वो निकालते हैं. नहीं, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम निकालते हैं. बोलेंगे इफ दिस मशीन गोज डाउन, पहले तो क्या था? हार्ड ड्राइव गोज डाउन. व्हाट इफ दिस मशीन गोज डाउन? आता काय करायचा? तो इन लोगों ने बोला हाँ यार ये पॉइंट है. So what we'll do is we'll create one more machine, and in this machine we will keep the other copy of data. तो देखो point याद रखना. When I am keeping it in the same machine, I am calling that a mirror. But if I keep this copy in another machine, what will I call that? See, everybody is saying the right word, that is replication. मैंने सेम मशीन पे रखा था तब क्या बोल रहा था? मिरर. जब मैंने उसको दूसरे मशीन पे डाला तो मैंने उसको क्या बोला? रेप्लिकेशन. ओके, तो रेप्लिकेशन बोलते कब है ये याद रखना है. ओके, you can't say replication anytime. It's only when it is on another machine. So now I got another copy here. So if somebody questions me, if this machine goes down, I have a copy on another machine. Okay, तो इसको मैनेजमेंट की भाषा में कैसा बोलेंगे? मैनेजमेंट की भाषा में, if this machine goes down, then there is a downtime. What is there? A downtime. मतलब मेरे पास जो बैकअप कॉपी है उससे मुझको रिस्टोर करना पड़ेगा एंड उसको रिपेयर करना पड़ेगा, एंड देन आई एम गोइंग टू बी बैक इन बिजनेस. तो डाउन टाइम आया कि नहीं आया? नाउ बिकॉज आई हैव टू मशीन्स इन द सेम डेटा सेंटर, लिख दूं क्या? सेम डेटा सेंटर. इसको तुम अवेलेबिलिटी जोन भी बोल सकते हो.
When I have same machine in the same data center, then in that case, if this goes down due to any reason, this is up and running. So do I get data loss? Answer is no. Do I get service loss? So the answer is no. Amazing, isn't it? इसको बोलते हैं जीरो डाउन टाइम। वो जैसे 0% इंटरेस्ट। तो बेचारे जिन लोगों ने बराबर मैथ किया नहीं रहता है, लाइफ का एक्सपोजर नहीं रहता है, धोखे में आ जाते। 0% इंटरेस्ट, वर्ड इंटरेस्ट आया ना मतलब गड़बड़। ये वर्ड इज गड़बड़ वाला है। यस, बीच में बैंक आ गए, फोकट में तेरे को देंगी, तू इतना मतलब इतना लाड़ पे आया, तू फ्री में तेरे को कोई कुछ देने लग गया। पापा फ्री में चमाट भी नहीं देते, तेरे को पैसे मिलेंगे। You are mistaken, my dear friend. It doesn't work like that. So वैसे ही है ये भी। तो क्वालिटी वाला आया, क्वालिटी वाले ने क्वेश्चन पूछा, what if this data center goes down? That's a problem, isn't it? तो तुम में से कुछ लोग ने क्वेश्चन दिमाग में रखा होगा, so I will deal with that question. That question is, suppose I have a network. तो मैंने एक नेटवर्क लिया रिलायंस से और एक लिया टाटा से। तो एक नेटवर्क समझो, कोई भी एक नेटवर्क डाउन हो गया तो दूसरा नेटवर्क अप एंड रनिंग है इन द सेम मशीन। सो मेरा नेटवर्किंग के अंदर क्या है? जीरो डाउन टाइम है। अच्छा, मेरे स्टोरेज में क्या है? जीरो डाउन टाइम। क्यों ऐसा? नेटवर्किंग वाला, सॉरी क्वालिटी वाला बोल रहा है कि अगर तेरा ये डेटा सेंटर डाउन हो गया ड्यू टू सम रीजन, कैलामिटी, कुछ आ गया, भूकंप, एम्प्लॉई ने हड़ताल बोल दिया, isn't it? कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया मित्रों कल से डेटा सेंटर बंद, तो क्या करेंगे? That's how it is. Anything can happen, isn't it? Anything, governance issue, anything. So do you have another copy in another data center? So the answer is no, you don't. So ये क्या है? ये प्रॉब्लम है। तो आपने कितने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया? एक है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, wear and tear, increased operational expense, too many machines required, you cannot scale up. तो इसको क्या है? Not scalable. एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन या उस जमाने में वैसा ही था। ओके, then later on you can say yeah, it was a little bit scalable, linear scalable, okay, scalable at some expense, increased expense. तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, isn't it? We discussed so many problems. So मैनेजमेंट जो है ना, इनको जब भी कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, तो what they do, they go to the CIO meet. ये जो CIO है ना इधर, ये लोग क्या करते हैं? कोई मीटिंग में जाते हैं, समिट में जाते हैं, समिट बोलते हैं उसको। अभी जैसे नेस्कॉम है, तो हमने नेस्कॉम को बोल दिया कि यार तुम लोग आईटी का ध्यान रखते हो, जरा देखो ये प्रॉब्लम चल रहा है, कोई सोल्यूशन है तो बताओ। तो उसने क्या किया? एक ईमेल शूट किया सारी आईटी कंपनीज को, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ। उन लोगों ने इसको सोल्यूशन बताया, बोला ठीक है, वी विल कीप अ समिट, इन दैट समिट यू गिव द सोल्यूशन टू ऑल द कंपनीज एट वंस। आया लॉजिक समझ में? दैट्स हाउ इट इज। तो जिस जमाने में ये बेयर मेटल का प्रॉब्लम था ना, तो जब ये पता चला कि ये हमको इसके लिए एक सोल्यूशन चाहिए, तो उस जमाने में ओपन सोर्स कम्युनिटी ने एक सर्वर बनाया जिसका नाम था ज़ेन सर्वर।
तो इसको जेन सर्वर के नाम से ही बोला जाता है. ओके, इट इज जेन सर्वर. करता क्या है ये जेन सर्वर? जिन लोगों ने यूज किया, दीज वर ऑल आईटी कंपनीज. उस जमाने में भी आईटी 4% ही था. ओके, अभी 5% हुआ है. तो उन लोगों ने बोला कि व्हाट वी आर डूइंग इज, तुम्हारा जो लेयर है नीचे का, दैट इज हार्डवेयर. इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास, उसका नाम क्या है? फर्मवेयर. फिर इस हार्डवेयर के ऊपर तुम क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम. So you install actually a software. Instead of that, now you have to install a software that will be VMware. So don't get confused. जिस जमाने में उन लोगों ने बोला था ना, उस जमाने में इसको वर्चुअल मशीन वेयर बोला जाता था. अब ये देख के कंपनी ने क्या किया, अपना नाम रजिस्टर कर दिया और बोला कि अब मैं VMware इज नाउ माइन. ये नाम मेरा रजिस्टर्ड, इट इज पेटेंटेड बाय अस. तो नाउ इन दिस एरा 2022 में तुमको बोलना पड़ेगा वर्चुअलाइजेशन. क्योंकि उस जमाने में हर चीज ऐसी होती थी, फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वीएमवेयर, दुआवेयर, शेयरवेयर, दिस वेयर, दैट वेयर, म्यूजिक वेयर, गॉड नोज व्हाट वेयर. ऐसे दुनिया भर के वेयर थे. गेटिंग द पॉइंट? तो वीएमवेयर ने बोला मेरा ये कॉन्सेप्ट मेरा है. तो अभी तो बहुत सारे लोग को ये बात समझी नहीं है ना? क्यों नहीं समझी है? तो उसको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा मुझको ओपन सोर्स. व्हाट इज जेन सर्वर? ओपन सोर्स. अच्छा, व्हाट डज इट डू? It does virtualization. Now the question is, what the hell is this virtualization? Good question. I like it, the way you are thinking. अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. अब ये सॉफ्टवेयर क्योंकि ओपन सोर्स है, इट इज हेक्टिक टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन पीपल. तो एक कंपनी ने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर किया, उसका नाम क्या रखा? VMware. तो ये क्या हुआ? ये हुआ एंटरप्राइज. अच्छा, इज दिस अ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर? सो द आंसर इज यस. तो एंटरप्राइज में ये अकेला है कि और भी लोग हैं? हाइपरवाइजर, सेम थिंग. एंटरप्राइज में और भी एक है, जेन KVM. अब तुमको ये बताना है कि ओपन सोर्स मैं लूंगा तो मेरा सारा काम क्या होगा? मैन्युअल. इंटरप्राइज में लूंगा तो मेरा फायदा क्या है उसमें? एनी ऑफ दिस इंटरप्राइज, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड SLA. मतलब अगर मैंने ओपन सोर्स जेन सर्वर लिया तो मेरा SLA जो है वो बन जाएगा 2 साल, 1.5 साल, 3 साल. लेकिन मैंने इंटरप्राइज लिया तो मेरा SLA क्या बन जाएगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. दैट्स इट. तो तुमको याद है मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, CFO का बोलना है कि जितना टाइम लगेगा मैं लॉस में गिनूंगा. तो SLA इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो इसको तुम्हारे एग्जाम्पल से लेते हैं. से फॉर एन एग्जाम्पल, तुम लोग अभी, तुमको जॉब लगने के लिए भी थोड़ा टाइम है, इजंट इट? लेकिन कुछ लोगों ने मेहनत किया और बराबर 7वें 8वें महीने में जॉब ले लिया. तो इसका मतलब है कि इनकी 9वें महीने में पगार आना शुरू हो गई. रिड्यूस्ड SLA. और कुछ लोगों ने बोला अरे आराम से रे, मैं आराम से करेगा रे, मेरे को, मैं बहुत पैसे वाले रे, बहुत मतलब बिंदास. तू पीना पीना थोड़ा पीना, वो चखना देना उधर से, आराम से रे, बहुत अपने पास बहुत टाइम है रे. नहीं क्या? तू टेंशन मत ले रे, अपन कर लेंगे रे. फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया,
SLA बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, आत्महत्या करने के लिए फिर रस्सी टांगाया इसने, है ना? अरे वो बाटली छोड़, तू इधर मेहनत कर, इधर अभी से आज से मेहनत कर, गया तेरा सैटरडे और संडे, जब पगार आएंगी ना तभी एंजॉय करना। अभी अभी रिसेंटली कोई मेरे को बता रहा था, एक बंदा 29 lakhs का पैकेज है अपना, उसका नाम नहीं बोलूंगा, वो जो जो उसका रूममेट है ना, वो बोल रहा था कि सर मैं उन लोग के साथ में रहता हूँ ना, बहुत पैसा खर्चा करते हो लोग, उन लोग को कुछ बोलो, समझाओ थोड़ा, इतना पैसा खर्चा करते। मतलब क्या है ना, पहले अभी गरीबी से आते, तो वो गरीबी एक फ्रस्ट्रेशन होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पैसा खर्चा करते। तो मैं बोला ये एक फेज होता है, फेज, लाइफ का एक फेज है, एंड लेट देम डू इट, डोंट वरी, बिकॉज ये फेज से वो लोग जब निकलेंगे ना, फ्रस्ट्रेशन जब तक खत्म नहीं होगा, वो गरीबी से निकला हूं ना मैं भी, तो वो फ्रस्ट्रेशन है, that's what they are doing, and this happens with everyone, don't worry, this is how it is. Now the question is, अब ये सारी चीजें तुमको याद रखना है, मेरे लिए कुछ याद नहीं रखना, मैं रात को 2 बजे भी बता सकता हूँ ये सब बातें, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी मैं डील कर सकता हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन हियर, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। ओपन सोर्स से एंटरप्राइज हुआ, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्त कि तुम इन प्रोडक्ट से प्रोडक्शन में जल्दी जा सकते हो, that's what it means, it's a production grade product. So that's what every company did, what they did, they installed VMware, this which is a virtualization software. तो आज से 10 साल पहले, 10 साल, 12 साल पहले, नहीं 15 साल पहले, जहां देखो वर्चुअलाइजेशन, जहां देखो VMware, जहां देखो VMware, 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 माय गॉड, VMware ही VMware, मतलब किसी ने VMware सीख लिया, उसको जॉब पक्का मिलेगा, ऐसा था। और लोग क्या सीख रहे थे? JS, एंगुलर, कोबॉल, पास्कल, रास्कल, जावा, तेरी की। अब सीखना क्या चाहिए था तेरे को, वो जमाने में धूम मची थी। दिस इज हाउ इट इज। सो जिस जमाने में जिस चीज की धूम होती है वही सीखना चाहिए, ना थोड़ा आगे जाना है ना थोड़ा पीछे जाना है, एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए वो सीखो, उसको समझो पहले, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो नाउ यू अंडरस्टूड हार्डवेयर को संभालने के लिए क्या है, फर्मवेयर। सम पीपल कॉल दिस बायोस, व्हिच इज इनकरेक्ट, CMOS, which is incorrect again, but it's okay. सॉफ्टवेयर, तो अब इसके ऊपर क्या इंस्टॉल किया, VMware। ऐसा क्यों? ये क्या करेगा कि मेरा जो हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर का लेयर है, हार्डवेयर के लेयर में क्या है, CPU। CPU में हमारे यहाँ पे मिनिमम जो होता है, कम से कम वो होता है 16 कोर्स। ओके, सो से फॉर एग्जांपल RAM will be 128 GB RAM, क्योंकि मोबाइल नहीं है ना, ये सर्वर है। Then you may have a hard drive, which we will not discuss, NIC, which we will not discuss for now. However, ये सारी चीजें क्या होगी, shared resources। shared resources का मतलब ये है कि 16 कोर है मेरे पास। VMware का काम है कि इस लेयर के ऊपर तुम एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करने वाले, उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक लिनक्स, isn't it? So इसका काम क्या है, लिनक्स का काम, टू ऑपरेट द सिस्टम, विच सिस्टम, दिस सिस्टम। एंड VMware का काम क्या है, VMware का काम है कि है मेरे पास 16 कोर, लिनक्स को जरूरत कितना है भैया, 2 कोर की है, तो तू 2 कोर ले और खुश रहे। हाँ, इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम और डाल दिया, वो भी लिनक्स, इसको भी मैंने बोला तू भी 2 कोर ले और खुश रहे। तुमने इस पे एक एप्लीकेशन डाला, इस पे एक एप्लीकेशन डाला, या इस पे 4 ऐप डाला और इस पे 4 ऐप डाला, तो टोटल कितने ऐप हो गए, 8 ऐप हो गए, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए।
लेकिन तुम्हारा जो हार्डवेयर का जो लेयर है वो कितना है? यू हैव ओनली वन हार्डवेयर लेयर. हाउ मेनी मशीन्स डू यू हैव? Finally, one machine. One machine is taking care of how many operating system? Two operating system. Can it take care of four operating system? Yes, it can. So मेरा जो रिसोर्स वेस्ट हो रहा था, वेस्ट याद है कितना हो रहा था? 60%. अब मैंने क्या किया? 40 + 40 कर दिया, यूटिलाइज्ड. तो मेरे तो 500 मशीन 1000 के काम करेंगे कि नहीं? मतलब मेरे पास 800 मशीन है, 1600 मशीन, तो 800 मशीन का बेनिफिट मिला कि नहीं? मिला. मिल गया कि नहीं? तो से थैंक यू टू द वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर. अब एक फायदा हुआ तो एक नुकसान भी है. फायदा है, नुकसान भी है. नुकसान क्या है कि ये हार्डवेयर अगर गया तो पहले एक मशीन मरता था तुम्हारा, मतलब एक मरता था, यानी 4 सर्विस मरेंगी. अभी 8 सर्विस एक साथ मर जाएंगी. Isn't it? That's how it is. But if you remember, we were talking about zero downtime. किधर गया zero downtime? Here it is. Zero downtime. If you remember, zero downtime का प्रॉब्लम क्या था कि हमको एक ही चीज के दो मशीन चाहिए थे. Oh yeah, that's exactly what we are going to do here. So what we will do is we will keep two machines, of course, with 8 services and 8 services. Or we can keep 16 services and 16 services on two machines. If this whole thing goes down, I still have one up and running. I am now getting zero downtime. But that is not solving the problem. Do I want zero downtime or I want something better? What do you say? I want something better. That is high availability. Exactly. Matlab, I want a system to be highly available all the time. वो कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट है ना, वो हमको बोलता है कि उनको पता रहता है ना ये टेकी लोग हैं, तो हमको देख के बोलते हैं वो लोग कि अरे यार देखना मेरा गूगल है ना वो चल रहा नहीं, गूगल डाउन है लगता आज. तो जो टेकी लोग होते हैं वो हंसते हैं, ये पगले गूगल डाउन नहीं है, तेरा केबल देख पीछे बराबर लगा नहीं होगा. उनको इतना भरोसा है गूगल डाउन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट पता है हाई अवेलेबिलिटी का. गूगल इज ऑन हाईली अवेलेबल सिस्टम्स. You, my dear friend, you are not on high availability. So you need to check your cable. आया लॉजिक समझ में? That's what it means. तो हमने वो जो प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम? Zero downtime, isn't it? We need two machines. तो उसके लिए ना कंपनीज के पास एक सोल्यूशन है. वो सोल्यूशन क्या है कि I will do a private contract. तो देखो एक पॉइंट याद रखना. सपोज I have a problem. My company name is Amazon. Same problem is with Flipkart. Same problem. भाई इसको भी हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, इसको भी हाई अवेलेबिलिटी चाहिए. तो दोनों के पास एक ऑप्शन है. क्या है? दो डेटा सेंटर बनाओ, DC1, DC2. 10 मिलियन इधर, 10 मिलियन इधर खर्चा करो. करेंगे क्या ये लोग? नहीं करेंगे. लेकिन हाँ एक बात तो है, फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी 10 मिलियन इधर किया है, अमेजॉन ने ऑलरेडी 10 मिलियन इधर किया है. ये जगह का नाम है बैंगलोर, ये जगह का नाम है मुंबई, बिकॉज इट इज इन वाशी. एग्जाम्पल ऑफ कोर्स.
तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये लोग बोलेंगे कि देखो तुम्हारे साथ में हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये लोग बोलेंगे हम तुम्हारे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि आई एम गोइंग टू कीप माय मशीन, one machine in your data center, you keep your machine in my data center। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मशीन भेजना पड़ेगा कि नहीं, मशीन भेजना पड़ेगा। अच्छा, एम्प्लॉय को भेजना पड़ेगा कि नहीं, इसका एम्प्लॉय फ्लाई करके जाएगा इसके लोकेशन पे बैंगलोर, बेंगलुरु, और इसका इधर आएगा मुंबई। सी, एम्प्लॉय भी आएगा, सर्वर भी आएगा, तो इट्स अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये, नो नो, वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ अ सोल्यूशन, व्हाट वी वांट। लेकिन ये एक जमाने का सोल्यूशन था, लोग इस तरीके से ट्रैवल करते थे, सर्वर्स भी जाते थे, और ऐसा रियल में होता था, इट वाज रियली हैपनिंग। बट लेटर ऑन they realize this is not a good solution, we need a better solution to this, isn't it? तो उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि देख, तू वैसे भी वर्चुअलाइजेशन में जा रहा है और तू भी जा रहा है, तो when you are going to do virtualization, keep this system empty for me, I will keep my system empty for you, your employee can work remotely from remotely, क्या बोला मैंने, remotely, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, isn't it? You can work remotely sitting at your location, matlab you can be here in Mumbai and work in Bangalore, and same thing will happen with them, they will be here in Bangalore and they will be working in Mumbai। so ये हम लोग मैनेज करेंगे कहां से, बैंगलोर से, हमारा मशीन, वो लोग ये वाला मशीन मैनेज करेंगे किधर से, मुंबई से, एंड इट्स गोइंग ऑन, isn't it? well, तो ये जो डिजाइन है ये उनको पसंद आया, और इनके पास क्या है, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है बैंगलोर में, मैं उसको पूछूंगा ना, तेरे एक मशीन तो मेरे को यहाँ डेटा सेंटर में दिख रहा है, लेकिन तेरा जो सेकंड मशीन है वो मुंबई वाला मुझको दिख नहीं रहा है, वो किधर है, तो ये बोलेगा इट इज इन द प्राइवेट क्लाउड। क्या बोलेगा, इट इज इन द प्राइवेट क्लाउड। तो वो जो ये दिख रहा है ये किधर है, तो वो बोलेगा दिस इज इन हाउस। क्या बोलेगा, इन हाउस। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, इसको हम लोग ऑन प्रेमिसेस नहीं बोलते, इसको इन हाउस बोला जाता है। इन हाउस मतलब प्रॉपर डेटा सेंटर। ऑन प्रेम का मतलब ये होता है कि मेरे पास मेरी ऑफिस में नीचे थोड़ी सी जगह है सीढ़ी के नीचे, और वो सीढ़ी के नीचे मैंने 15-20 सर्वर डाल दिए या 50-100 सर्वर घुसाड़ दिए, और मैंने बोल दिया कि दिस इज माय ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर, ऑन प्रेम। जैसे कॉलेज में होता है ना, एंट्रेंस के ऊपर एक छोटा सा सीढ़ी के बाजू में डेटा सेंटर, जिसको इंस्पेक्शन के दिन चालू करते, बाकी का पूरा साल बंद। यस। सो और बोलते हैं क्या, ये हमारा डेटा सेंटर है। मैंने बहुत कॉलेजेस में देखा है ये, इसलिए बता रहा हूं। दैट इज कॉल्ड ऑन प्रेम, दे डोंट नो दिस इज ऑन प्रेम डेटा सेंटर। कैन यू कॉल दैट डेटा सेंटर, यस इट यू कैन, बट इट इज ऑन प्रेम। तो बड़ा खर्चा किस में होता है, इन हाउस। किस में होता है, इन हाउस। तो सपोज आई हैव डेटा सेंटर in the private cloud, I also have data center in house, तो इसको तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। what is it called, hybrid cloud। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड है। प्राइवेट कैसे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ही प्राइवेट होता था।
अब एक क्वेश्चन, इन लोगों ने ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया, कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए किया? What are they achieving by doing this contract? In one word, you have to say that. Durability, HA, very nice. है ना, site availability चलेगा, तो it is about the HA. तो इससे ना इनको एक फायदा और मिला, वो फायदा ये मिला कि मेरे जो कस्टमर्स मुंबई में हैं, they will actually go to this server. मेरे जो कस्टमर बैंगलोर में, they will go to this server, which means I am automatically getting what? Load balancing, isn't it? तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? You're getting, अभी कैलामिटी आई एक जगह पे, आने दे, कोई बात नहीं, पूरे कस्टमर्स हमारे, उनको सर्विस लॉस भी नहीं होगा और बिजनेस लॉस भी नहीं होगा और डेटा लॉस भी नहीं होगा, एंड इट विल फंक्शन स्मूथली. लेकिन इंसान का दिल मांगे मोर. अब क्वालिटी वाला आया, क्वालिटी वाले ने बोला ये तुम्हारा जो लोड बैलेंसिंग है ये अच्छा है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर है ये भी अच्छा है, बट वन थिंग इज ट्रबलिंग. हाँ भाई बोल, तू क्वालिटी वाला है, क्वालिटी मतलब पुलिस, उनके सवाल कैसे रहते पता है ना, सबको चिढ़ चढ़ती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए ऐसे सवाल पूछते, किसी को प्रोटेक्ट करना है ना, तो इनको ऐसे रफ सवाल पूछना पड़ता है, और उनको ये पता होता है अगर ये सच में ईमानदार है तो सही सही जवाब दे देगा, क्या प्रॉब्लम है भाई, तू चोर नहीं है तो तेरे को डर किस बात का, दे दे जवाब, खत्म कर. अब तू फंसा तो जवाब तो देना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ इट इज, क्वालिटी विल आस्क यू क्वेश्चंस, डर्टी क्वेश्चंस. तो उसमें से क्वेश्चन होगा कि व्हेन इन हाउस का डेटा सेंटर इज अप एंड रनिंग, वी आर इन बिजनेस, you got HA over here, we are in business, agreed. If one of the server goes down, say this data center is now gone down, example, okay, God forbid, but if it goes down, how much time will you take to bring that up and running? Because all the load will be not balanced, it will be overloaded over here. ओ अब सर खुजाने वाली बात हो गई, तो हम उसको बोलेंगे यार यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस विल टेक अबाउट 1 hour to bring this up and running. 1 hour का मतलब ये होता है for that hour we are not in HA. तेरी तो, देखा तुमने क्वालिटी वाला कैसा सोचता है? तो देयर इज नो डाउन टाइम ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज मेरा बिजनेस तो चल रहा है ना, मेरी सर्विसेज चालू है दूसरी जगह पे, सब कस्टमर को तो पता भी नहीं चलता है क्या हुआ. लेकिन ये जो है क्वालिटी वाला, इसने हमारा बोल दिया ना, 1 घंटे का SLA दिया ना मैंने उसको. See, I can say usually administrators they can bring it up and running within 15 minutes, but they will never say that. They will be a fool to do that mistake. They will always give डबल टिबल चोबल टाइमिंग. 15 मिनट में मैं कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा 1 घंटा लगेगा. क्यों? ताकि तुम लोग मेरी जान नहीं खाओ. दैट्स हाउ इट इज. क्यों? SLA का भी एक रूल है, हमको पता है कि 1 hour बोला, सेफ साइड में हूं मैं, 1 के ऊपर नहीं गया ना मैं, 1 के ऊपर अनसेफ है. तो वो भी पता होता है ना एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स को. तो हम बोलेंगे 1 घंटा. और अगर कोई नया नया फ्रेशर आ गया, फ्रेशर को इसलिए तो नहीं लेते ना, फ्रेशर आ गया उसको सच बोलूंगा मैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा मैं. और सर 15 मिनट में हो जाएगा सर, मैं करके दिखाता हूँ. तो इसने सच बोला कि नहीं? सच बोला इसने, 15 मिनट में हो जाएगा. लेकिन जो एक्सपीरियंस सीनियर होगा ना, वो उसको 4 गालियां दे डालेगा और उसको लगा नेक्स्ट टाइम तू है ना मैनेजमेंट से बात भी नहीं करेगा, चल दफा हो जाए यहाँ से, निकल, गेट लॉस्ट, डोंट इवन शो योर फेस टू बी. 15 मिनट. उसका रीजन क्या है? 15 मिनट में मैंने अप एंड रनिंग कर दिया, ओके. और उसके बाद मैंने उसकी टेस्टिंग किया और वो फेल हो गया.
तो अब मैनेजमेंट तो एरर पे एरर मार्क करेगा मेरे को, और मेरे इंसेंटिव की तो बैंड बज गई समझो। इंसेंटिव तो छोड़ दो, कभी कभी टर्मिनेट भी कर देते वो लोग। अब मैंने 1 घंटा बोला तो मैं सेफ साइड में हूँ कि नहीं? नहीं चला, कोई बात नहीं दोस्त, अपने पास अभी 45 मिनट बाकी है फिक्स करने को। अब इंजॉय करो, क्योंकि स्क्रिप्ट में प्रेशर में बहुत सारे गड़बड़ हो जाती है। यस, यू नीड टाइम फॉर दैट। या यू आर ओके, 15 मिनट में आ गया, पुरस्कार मिलेगा तेरे को, बस खुश हो जा। तो हम लोग जब ऊपर अप एंड रनिंग हो भी जाता है ना, उसको बोलते हैं या इट टेक्स 1 hour, वी आर डूइंग सम टेस्टिंग, बट राइट नाउ इट इज अप एंड रनिंग, यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट, बट इट टेक्स 1 hour। उनके भेजे में घड़ी घड़ी घुसाते, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। दिस इज हाउ इट इज। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते, 15 मिनट में ऊपर किया, अरे यार वाह वाह वाह, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, सच और सच्चाई का फर्क। दैट्स हाउ इट इज। दिस इज व्हाई दे डोंट टेक फ्रेशर्स, क्योंकि वो कब वाट लगाएंगे किसी को पता नहीं है। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। नाउ एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, और क्या था पता है? वी डिस्कस्ड शेयर्ड रिसोर्सेज। ओके, देन वी, और कौन सा प्रॉब्लम है जो अपने डिस्कस करना बाकी है? Yeah, see, multiple applications we are running on one machine, isn't it? तो मेरा जो ये लोड बैलेंसिंग एंड ऑल ऑफ दिस, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। उसका रीजन है, जब प्राइवेट क्लाउड में और अब ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एट दैट टाइम वी फर्स्ट चेक कि इनके डेटा सेंटर के पास ISO 27K सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। इफ दे हैव दिस सर्टिफिकेशन दैट मींस इट इज सिक्योर्ड। और ये जो ISO है, ये तुम्हारा 2008 एंड 7 एंड 12 एंड 22 ये सब नहीं है, जो ये लोकल मिलती है ना इधर, 300 रुपया दो सर्टिफिकेट लो, वो नहीं है ये। दिस इज ISO 27K फॉर डेटा सेंटर सिक्योरिटी। ओके, तो इसमें भी बहुत सारी ISOs होती है, इसके अंदर बहुत बड़ा इंस्पेक्शन होता है, और दे कम प्रैक्टिकली, फिजिकली दे विल कम, देयर आर हेवी चार्जेस दैट यू हैव टू पे फॉर इट टू गेट दैट सर्टिफिकेट। तो वंस यू गेट दी सर्टिफिकेट, उसके बाद तुम्हारा जो डेटा है कौन से टाइप का डेटा है, समझो हेल्थ केयर का है तो तुमको हिप्पा का कंप्लायंस फॉलो करना है। अगर वो तुम्हारा टेली कम्युनिकेशन का है, जैसे वोडाफोन जियो वगैरह का डेटा है, तो तुमको ट्राई का कंप्लायंस फॉलो करना है। ट्राई नहीं, इंडिया में क्या है, ऑफकॉम। नहीं, ट्राई है ना इंडिया में, तो यार मैं भी भूल गया, इंडिया में ट्राई है, यस। और ऑफकॉम इज इन UK। तो ऐसे सबके अपने अपने कंप्लायंसेस होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट कंप्लायंसेस, दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अभी तुमको एक चीज तो फीलिंग आ गई है ना, सच्ची बोलना, बहुत मगजमारी है रेलों के डेटा सेंटर में, जबकि मैंने डिस्कस ही नहीं किया कुछ, मैं तो ओवरव्यू बता रहा हूं, अभी तो पूरी किताब बाकी है ना मगजमारी। इतना सब करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, what you are getting is, my god, servers are running, है ना? ऐसा ही है ना? यस। अच्छा, और इससे भी वो लोग खुश नहीं है, क्योंकि हमने लास्टली क्या डिस्कस किया था, फॉर दैट 1 hour यू आर नॉट इन HA, डिस्कस किया कि नहीं किया? सो कंपनीज ने बोलना शुरू किया, what we are looking for is this, multiple availability zones। तो इसको जब मैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद याद रखना है तुमको, क्योंकि यहां से अभी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। क्योंकि अब तुम पहुंचे हो 2011 में, कहां पहुंचे हो तुम? 2010 में एक्चुअली। ओके, कंपनीज आर लुकिंग फॉर 3
data centers, 3 availability zones. So I have an option. I can do contract with 2 different companies. तो एक कंपनी तो ओन्ड होगी खुद की, तुम इसको क्या बोलोगे, इन हाउस. एक के साथ तुमने पहले से ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. अब तुमको एक और कंपनी चाहिए जिसके साथ तुम क्या करोगे, once again private contract. Only then you will be able to fulfill the criteria of 3 availability zones. If you're very rich, okay नहीं, तो some companies क्या करती है मालूम है, they don't do the private contract, they create on-prem. Why? Because they only want to keep their data safe. तो एक कॉपी मेरा डेटा का इधर है, second copy is here, and third copy is here. So always I'm using these 2 copies. So if somebody says कि तेरा ये वाला down हो गया, for an example, okay, so I will bring my services up and running over here. So my SLA will drop to 1 minute, sometimes less than that. And that is negligible. Why? Because I already have one running here. लेकिन ये मेरे को उसको चालू करना पड़ेगा, ये चालू नहीं रहेगा. I have to turn it on. But this is not a good solution in many cases, because applications का जो switching है वो इतना आसान नहीं है. So that's again a problem. तो एक कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और बोला इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक सॉल्यूशन है. Because this problem is not problem of one company, it is for everyone. और इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था. Amazon, they were growing the business and they knew that people are not going to invest money in the infrastructure. So I will give this infrastructure as a service. So when I say infrastructure as a service, तो अभी कितना टाइम हुआ है, somewhere around 5 PM. 1.25 घंटा हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, वर्चुअलाइजेशन, हाइब्रिड, इन हाउस, ऑन प्रेम, resources, optimal, recommended, minimum, all of that we discussed. And the infrastructure, location, zero calamity, transport, logistics, server systems, network, blah blah blah, a long list short. Shortcut में क्या बोलूंगा मैं, infrastructure. अगर मैंने इस कंपनी ने सबको बोलना शुरू किया, I will give you infrastructure as a service, which means I will give you 3 availability zones in 3 different locations. पुणे में नहीं है, हैदराबाद में ना. So let's put Hyderabad. Okay. दिल्ली में है वैसे. I will give you 3 different availability zones. तो इसका जो स्पाइन नेटवर्क है, इसका टेंशन हमको लेना है नहीं. इसकी टेक्नोलॉजी का लेना है नहीं, हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का नहीं, वर्चुअलाइजेशन का नहीं, स्टोरेज का नहीं, सिक्योरिटी का नहीं. फिर SLA, व्हाट इज द SLA? दैट इज अ गुड क्वेश्चन. मुझको ये जो एक डेटा सेंटर इधर बनाया ना इन हाउस, ये बनाने के लिए 3 साल लगे थे. कितने साल? 3 years. जस्ट फॉर यू टू नो, गुड टू नो नॉलेज. तुमको है ना TM से काम नहीं चलता इसमें. इसमें क्या चाहिए मालूम है, ये चाहिए R, रजिस्टर्ड, which is hectic. उसके बाद जिस कंपनी के साथ तुम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दे आर सपोज टू बी ISO 27K, तो यू आर आल्सो सपोज टू बी ISO 27K, देन ओनली दे विल डू द कॉन्ट्रैक्ट विथ यू.
This documentation only takes 6 months. तो forget about rest of the things. तो इसका भी जो SLA वो 1 year का है. 3 years, 1 year. And I am getting what? 2 different location. Am I getting choice of location? No, I'm not. I can't choose that. जो मिल गया भाई, हाँ ये जो मिल गया सब अच्छा है, चलो. हमारे से 200-300 किलोमीटर दूर है ना, बस हो गया. 500 किलोमीटर दूर है, बस हो गया. That's the logic. तीसरा रेप्लिकेशन करना है मुझको डेटा का, so I will keep it on prem, which means again capex and opex. Apart from that, I will need lots and lots of employees to take care of this, isn't it? Now infrastructure as a service जब Amazon ने इंट्रोड्यूस किया तो उसने बोला कि देख मैं तेरे को 3 अवेलेबिलिटी जोन दे रहा हूँ 3 डिफरेंट लोकेशंस में, which is connected to the spine network, which means you can consider them as one location. तो उसको उसने बोलना शुरू किया region. So your data is in one region, say for an example India. So इसका जो गवर्नेंस है वो कितना होगा? एक गवर्नेंस इंडिया का होगा, एक होगा कर्नाटका, नहीं है ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटका और ये है महाराष्ट्र. तो इन टोटल कितने गवर्नेंस हो गए? 1, 4 गवर्नेंस हो गए, 4. इसका टैक्स अलग है, इसका टैक्स अलग है, इसका टैक्स अलग है, इसका टैक्स अलग है, भाषा भी अलग है, कंट्री एक है. इसीलिए मुझको कभी कभी कोई पूछता है ना, वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं उनको बोलता हूँ आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. आया समझ में? गवर्नेंस है ना, इतने सारे टैक्सेस है कि नहीं है? नाउ द क्वेश्चन इज, एक तुमको ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत भारी पड़ सकता है, सोच के बोलना. मैंने यहाँ पे हार्डवेयर मैंने लिया कि अमेजोन ने लिया है? अमेजोन ने लिया. लेकिन जिस जमाने में हम लोग ये करते थे उस जमाने में हार्डवेयर हमको लेना पड़ता था डेफिनेटली. तो से फॉर एग्जांपल माय हार्डवेयर इज डेल, माय नेटवर्क इज सिस्को, माय स्टोरेज इज EMC स्क्वायर, माय database is Oracle, then my application is SAP, then some product I have purchased middleware का HP. मतलब इसका बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा, सबके अपने अपने बिल्स आएंगे, सबके अपने अपनी वारंटी होगी, सबके अपने अपने मैनेजर्स होंगे, एंड देन देयर विल बी ऑडिटिंग फॉर ऑल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ये लिस्ट बहुत बड़ी है. तो HP का गवर्नेंस, SAP का गवर्नेंस, Oracle का गवर्नेंस, EMC, सिस्को, डेल, उसके अलावा कंट्री, स्टेट है ना, तो मल्टीपल स्टेट्स. तो जितने स्टेट में तुम्हारा डेटा सेंटर है उतने स्टेट्स. तो यहाँ 1, 2 and 3. तो गवर्नेंस ज्यादा किधर है? व्हाट डू यू से? ये पुराने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि नवे वाले में? पुराने वाले में गवर्नेंस बहुत ज्यादा है, isn't it? नवे वाले में कम है. कैसे? एकच, AWS, सिंगल गवर्नेंस. आया ना मजा? कितने बिल आएंगे अभी मुझको? एकच बिल. सारे मैनेजर लोगों को बोला चल जा घर पे जा, चल, no managers required, I can get this job done by anybody. In fact ऑडिट वाले को बोलूंगा तू संभाल ले यार, बहुत इजी है, देख लॉगिन किया हो गया,
बिल भर, बस टेंशन फ्री, जान छुटी। एचपी की मीटिंग अलग, डेल की मीटिंग अलग, ईएमसी की मीटिंग अलग, ओरेकल की मीटिंग अलग, दिमाग पचा डालते थे ये लोग। अब तुमको मैनेजमेंट का दुख और दर्द दोनों समझ में आया। दे आर फेड अप ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर and they love this infrastructure. They just love it. Why? Two reasons: less governance and less SLA, less cost. और less cost की जगह पे you can say that is better. Zero capex. मतलब I am a startup, नया नया कंपनी है, पैसे नहीं जेब में, फंडिंग की जरूरत भी नहीं है। तेरे को कितने सर्वर चाहिए? 500, 400, 300। अमेजोन पे 300 सर्वर ले, धंधा कर, पैसे कमा, महीने की एंडिंग में बिल भर, एंजॉय कर। वेलकम, वेलकम टू 2022। It is much easier to become rich in this era than ever before. Ever before. The only thing is you have to invest your time in the right place with the right people with the right knowledge. That's it. अब ये वाला पॉइंट समझ में आया? So now you have data, data, and data. Is it all under one roof? So the answer is yes, it is under one roof. Is it all in one region? The answer is yes, it is in one region. So there are companies, those who are looking for another solution. You know what is that solution? अब यहाँ पे ना मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस सॉल्यूशन का नाम है 11/9 ड्यूरेबिलिटी। मतलब ये कि 1 मिलियन यानी 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब 10 लाख प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें से एक प्रोडक्ट खराब होगा। बट व्हेन यू काउंट दिस इन टाइम, so 1 million years you will get one problem. Some people say 1 million seconds or 1 million minutes के अंदर तुमको एक प्रॉब्लम आएगा, ऐसा भी बोलते लोग। It's okay, but whatever it is, 11/9 durability is very high. So the question is, why can't we say 100%? 11/9 बोलने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब गूगल ने दिया है। We don't want to play God. Why we don't want to play God? Because the moment you say 100%, God को बहुत बुरा लग जाता है। हाँ, और God क्या करता है? टाइटैनिक को डुबा डालता है। Yes. So don't make that mistake. Don't try to play God. ऐसा उनका बोलना है। So always keep some room, सब छोड़ दो, थोड़ा सा परसेंटेज को छोड़ दो, टेंशन मत लो। But if somebody wants to say 100%, तो वो गॉड ही हो सकता है जो बोल सकता है। हम तो बोल नहीं सकते, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। And you also try not to do that mistake ever. Okay. Now the question is, तो हमको एक बात पता चली कि गूगल एथियस्ट नहीं है। Okay. Now the question is, Amazon ने जिस वक्त ये AWS निकाला था और ये प्रपोज किया था, तो बहुत सारी कंपनीज ने बोला था कि नहीं यार, इट इज नॉट सिक्योर्ड एंड सिक्योरिटी का एक इशू आएगा बिकॉज देयर इज नो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए तुम इसको बोलते हो पब्लिक क्लाउड। Why? Anybody can use it.
तो इसका जो मैकेनिज्म है एग्जैक्टली वर्चुअलाइजेशन के जैसा ही है। अगर मैंने बोला तुमको एक क्वेश्चन बेयर, ओहो, अब ये तो तुमको सबको पता ही है कि बेयर मेटल इज द टर्म गिवन बाय आईबीएम। ये हमने पिछले सेशंस में डिस्कशन किया है। सो बेयर मेटल का मतलब ये होता है डेडिकेटेड, है ना। इफ यू वांट टू कॉल दिस इन हाउस, you are welcome. What about virtualization? Oh, ठीक है. It is a shared environment, है ना? Shared environment. And इसको तुम cloud बोल सकते क्या? No, you can't, isn't it? You can't call shared environment a cloud. लेकिन because of that contract, we call that a cloud. वैसे भी cloud का मतलब क्या होता है पता है क्या? ये अमेरिकन टर्म है. Where did they get this term from? वो वहां पे ना Cloud9 बोल के एक शॉप्स होती है, दुकानें, जिसमें बच्चों का सामान मिलता है, न्यू बॉर्न बेबीज. तो उसका मतलब क्या होता है Cloud9 का? क्योंकि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है. तो अगर सपोज किसी प्रेग्नेंट वुमन को अमेरिका में तुमने पूछ लिया विच क्लाउड, तो उसको समझता है इसका मतलब क्या है, कौन सा महीना चल रहा है. तो उसने बोला द 9th क्लाउड, मतलब ये 9वां महीना है. इसका मतलब अभी डिलीवरी होगी और डिलीवरी होने के बाद ही तुम बच्चे को देख सकते हो. तो बच्चे का जो सामान है वो किधर मिलेगा? Cloud9 में मिलेगा. Cloud9 बच्चों का सामान. So can you see the child before the 9 month? So the answer is no. So if you ask where is the child, so they will say it's in the cloud. वहीं से उठा लिया. सर्वर किधर है? क्लाउड में. मशीन किधर है? क्लाउड में. Are you getting the point? So that's how the word is. तो ये है shared environment. Environment. Oh, brain is working faster than the pen. Okay, तो इसका एक जमाना था, गया. आज की तारीख में there are 3% कंपनीज, और इस 3% में 10% सिर्फ फाइनेंस डोमेन है. अरे बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तुम्हारे लिए, है ना भाई. दुनिया में जो कंपनीज है वो कितनी है? 65 मिलियन कंपनीज है. उस 65 मिलियन में से 3% आज भी बेयर मेटल पे है. और उस 65 मिलियन कंपनीज में से जो 3% है उसका 10% फाइनेंस है. फाइनेंस डोमेन, तुम्हारा इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह वगैरह, है ना. वो लोग अभी भी जैसे HSBC वगैरह जो है, दे आर स्टिल ऑन बेयर मेटल. दैट डज नॉट मीन HSBC इज नॉट इन द क्लाउड. दे आर शेयरिंग देयर वर्कलोड. कुछ वर्कलोड उन लोगों ने कहाँ रखा है? बेयर मेटल पे. कुछ कहाँ रखा है? वर्चुअलाइजेशन पे. और कुछ कहाँ रखा है? क्लाउड में रखा है. क्लाउड. सो अभी जो जमाना चल रहा है वो ना बेयर मेटल का है ना वो वर्चुअलाइजेशन का है. वर्चुअलाइजेशन इज एनी विच वेज. Some people will get shock of their life to see that is 65%. Okay, actually more than 65% because startups की संख्या ज्यादा है, इसके लिए क्लाउड का बोलबाला है. Majority is now in the cloud. So cloud के अंदर will you get dedicated as well as shared? So the answer is yes. You अभी तुमको पता चल गया क्लाउड क्या होता है. तो पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, इन हाउस, ऑन प्रेम, ये सब तुमको पता होना चाहिए अच्छे से. ओके, लेकिन जो फ्यूचर है, ये तो अभी जो चल रहा है, वो जो फ्यूचर है वो किसका है? वो है मल्टी क्लाउड का.
isn't it? इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग फटाफट निपट लेते हैं। क्लाउड तो समझ में आ गया। तो say for an example, I have 3 AZs, AZ1, AZ2 and AZ3, 3 availability zones. You tell me, ये जो 3 अवेलेबिलिटी जोन है इसमें मैंने क्या रखा है, मेरा डेटा कॉपी 1, copy 2 and copy 3. So is that replication? Yes, it is replication. Is that in 3 different locations? So the answer is yes. 3 different location and 3 different availability zone. They are all connected with the spine network. I have my data. I am getting 11.9 durability. So जब मुझको प्रोसेस करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको डेटा प्रोसेस करने के लिए कोई प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा, isn't it? I will use a program and then I will process the data, 2 copy, 3 copy. But while I am processing, so तुम शायद भूल रहे हो इस बात को, some people will understand this quickly, some will have difficulty understanding, but it's okay. You will also understand someday. मुझको ये स्पाइन नेटवर्क से कनेक्ट करके देने वाली कंपनी का नाम क्या है? AWS. इसीलिए कंपनी क्या बोल रही है? कंसीडर दिस एज वन रीजन. तो हमने उसका एग्जांपल क्या लिया था? इंडिया. नाउ द क्वेश्चन इज, AWS ने स्पाइन नेटवर्क से हमको क्या किया? ये डेटा कनेक्ट करके दिया है, isn't it? So while I'm processing, say for example, I'm processing this data with some program. So when I'm running the program, this spine network is actually helping me to process this data at once. It is helping me. तो मेरा कोई प्रॉब्लम मुझको कहीं नजर ही नहीं आ रहा है इस केस में. I am not seeing any problems here. Everything is working absolutely smooth and happy go lucky, and 10 साल निकल गए, 2022 आ गया, 21 आ गया, isn't it? 2021 में कंपनीज ने एक प्रॉब्लम देखा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कि कुछ कंट्रीज का जो गवर्नेंस है वो फटाफट बदलता जा रहा है. कुछ कंट्रीज ने पॉलिसीज बदल डाले, कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन हो गई, कुछ कंट्रीज में बिजनेसेस फेल हो गए, कुछ all different kinds of things happened. So they said this is a problem. The problem is, if we keep all data in one region under one governance, तो हमारे पुराने प्रॉब्लम तो सब सॉल्व हो गए थे इससे, लेकिन एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि अगर इस गवर्नेंस में कुछ प्रॉब्लम आया, कभी इन लोगों ने कुछ पॉलिसी बना दिया कि नो, योर डेटा वंस इट इज इन द कंट्री इट शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स, देन वी विल बी इन बिग टाइम ट्रबल. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन चाहिए इनको. तो बोला भाई डेटा तो हमारा इधर है और प्रोसेसिंग भी हम यहीं पे कर रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? तो उसका एक तुमको फटाफट समझा देता हूँ. सी आई हैव अ गवर्नेंस फॉर अ स्टेट 1 2 3, तो टोटल 4 गवर्नेंस हो गया, और एक AWS, कितने हो गए टोटल? 5 गवर्नेंस. नंबर डाल देते, 1 2 3 4 and 5. कितने हो गए? 5 गवर्नेंस. अब मैंने डेटा प्रोसेस करने के लिए क्लाउडेरा इंस्टॉल किया, तो क्लाउडेरा का एक गवर्नेंस आ गया. इसको क्लाउडेरा डेटा गवर्नेंस बोला जाता है. मैंने इसमें लिनक्स डाल दिया. अब लिनक्स का जनरल पब्लिक लाइसेंस साइन किया मैंने, तो इसका भी अपना खुद का एक गवर्नेंस आ गया. मैंने इसके अंदर अपाची का प्रोडक्ट इंस्टॉल किया, अपाची का गवर्नेंस आ गया. ओ माय गॉड, 6 7, अब तक का 8 हो चुका है. तो मेरे ये इसने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि नहीं किया है? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जो प्रॉब्लम्स होते प्लेटफॉर्म रिलेटेड, वो सॉल्व
नहीं किया है। वो प्रॉब्लम मेरे जैसे थे वैसे ही है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज गवर्नेंस, which means मेरा ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है, they have to worry about all of these governances. इसमें से कुछ गवर्नेंस ऐसे है जो जिसपे हमको भरोसा है कि चलो यार ये ओपन सोर्स कम्युनिटी का है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज नंबर 8, नो प्रॉब्लम. लिनक्स ओपन सोर्स, नो प्रॉब्लम. नंबर 7, Cloudera, we are paying for license, it should not create any problem. AWS, we are paying the bills, not problem. We are paying taxes, no problem. Taxes, no problem. Taxes, no problem. We are paying taxes here also, no problem. But what if the government changes and they come up with some new policies and they are not very friendly with AWS? तो इन लोगों बोला हाँ ये प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है दोस्त कि हम लोग अगर एक ही रीजन रखेंगे तो we have to worry about this governance maximum. So what we'll do is we'll keep in multi regions. So I'm going to keep my data now in Microsoft Azure, in AWS, in GCP. Forget about that. In different countries, somewhere in Europe, maybe Ireland, somewhere in United States, maybe Ohio. Okay, तो इसको भी USA कर देते ना. And somewhere in Asia. Now the problem has changed. Why? Because my 3 different copies are in 3 different locations. तब जो थोड़ा सा जानकार होगा वो एक क्वेश्चन पूछेगा. Can you connect this with a spine network? Put that on the chat window. Yes or no? No, you can't. That means you have to come through a, ये अभी तुमको नेटवर्किंग के सेशन में समझ में आएगा. डोंट वरी, रिलैक्स. अभी खाली इसको समझ लो कॉन्सेप्ट को कि मल्टी क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए. हमारा डेटा यहाँ रखा हुआ है, डेटा का लेयर है ये. ओके, इन 3 डिफरेंट लोकेशंस. एनीथिंग हैपेंस इन एशिया, सपोज माय कंट्री इज इंडिया एंड द गवर्नेंस सेज मित्रों कल से 12 बजे के बाद ये डेटा आपका नहीं रहा. वाट लागली, आता काय करायचा? अब करना क्या है? तो हमारे पास डेटा का 2 कॉपी सेफ है. किधर? वी विल से ओके नो प्रॉब्लम, मार दे RMRF, उड़ा डाल सब कुछ. क्यों? कुछ फर्क नहीं पड़ता, उड़ा दे, है मेरे पास 2 कॉपी सेफ. Isn't it? मालूम पड़ा यूरोप में, यूके में कुछ गड़बड़ हो गई, बिट्रिक्स के जैसा है ना. हो सकता है यूएसए में कुछ गड़बड़ हो गई और ट्रम्प के जैसा उसका मूड में आया, उसने बोला सैंडविच खाने के बाद तुम्हारा डेटा तुम्हारा नहीं रहेगा. लटक गए हम. सो कंपनीज इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती है. नो, डेटा इज द किंग एंड वी कांट लूज दैट so easily. So they want all these data in 3 different locations. They are going to use public DNS, which is a threat. भाई मैं अगर public DNS यूज करूंगा तो एक threat है कि नहीं? It's a problem. It's a problem, big time problem. And now the problem is data का storage का solution तो है हमारे पास. क्या है वो solution? Multi cloud. Process कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे to process this data you can use Cloudera. जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो Cloudera बोलेगा ये भैया ज्यादा जज्बात में नको आओ. If you are using CDH,
you cannot do that processing. If you're using CDP, yes, you can process it. How? Because CDP is going to process this data, all of this data, okay, on top of SDX, जिसका मतलब होता है Kubernetes. SDX का मतलब होता है Shared Data Experience. तो अब उन लोगों ने इसका नाम ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि उनको वर्ड Kubernetes छुपाना है. So because of Kubernetes, yes, you can do it. So if some company is in multi-cloud and you are saying, okay, yeah, CDH can do that, it can process. No, it can't, for your kind information. Only CDP can do it. Or otherwise, I have to use my own Kubernetes to process. Kubernetes on Spark, Kubernetes on Kafka, Kubernetes on everything. Then there is another problem as well. You know what? CDH में मैंने जो बनाया था प्रोग्राम्स, तो मैंने प्रोग्राम्स को कैसे बनाया था? मोनोलिथिक. CDP के जो मेरे प्रोग्राम्स है उसको मुझको कैसे बनाने पड़ेंगे? माइक्रो सर्विसेज. अब तुम्हारे को अगर कोई तुम्हारा गवंडी दोस्त है और उसको तुमको मदद करनी है, क्या तू गवंडी रहे उसमें लेकिन ज्यादा पैसे कमा, तो उसको बोलो दोस्त, हाउ टू क्रिएट माइक्रो सर्विसेज प्रोग्राम सीख ले, तेरा कल्याण होगा गारंटी के साथ. Because everyone in the world is looking for such skill. They want programmers, those who can convert monolithic to microservices so that we can run it on the Kubernetes. But this is not happening very fast. It will take lots and lots of time. 3 साल, 2 साल, 5 साल. तुम देख लेना, तुमको समझ में आएगी बात धीरे धीरे. सो हमारा प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है. कौन कर रहा है? Kubernetes. Getting the point? तो वो कैसे कर रहा है उसको बोलते हैं GitOps. Now what is GitOps? Relax. Shortcut में it pushes the code automatically. Getting the point? मतलब तुमको उसका टेंशन नहीं लेना है कोड को पुश करने का, वो ऑटोमेटिकली पुश करेगा GitOps से. एंड नेटवर्क ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करेगा, फायरवॉल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करेगा. Almost everything is done automatically. Kubernetes actually works in AIOps layer. उसका जो लेयर है वो किसमें है? AIOps में. Because it automatically resolves the DNS, firewall and everything, and it does the processing for you, which is mind-boggling technology in reality. अब कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा ये लास्ट वाला पार्ट है ना, तो उनको क्या करना है? मल्टीपल टाइम्स सुनना है इसको, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. Now the question is, how many governance? Multiple governance. Can we take care of multiple governance in previous infrastructure? So the answer is no. 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 Can you take it here? Yes. तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का कुछ नाम होगा ना, which is helping you to do that. You tell me, what is the name of that technology? अभी तो लिखा इधर Kubernetes. फिर तुम लोग उधर भागने लग गए मेसोस एंड काफका. लेकिन तुमने क्योंकि मेसोस बोला है तो चलो ठीक है. See, you got a data center. Oh my God, this color is killing. है ना? We'll take white or green. So, green कैसा घास का कलर है ना, आंखों को अच्छा लगता है देखने के लिए. बारिश का सीजन भी है. Say for example, this is data center, and
I want to take care of just a server in this data center, one server. Okay, ऊपर लिखना पड़ेगा. So server है ना, एक machine, एक server. I want to take care of this, so I will use Linux. बराबर है कि नहीं? बराबर है. Now I want to take care of 1000 servers. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? Cluster. I will use Hadoop, isn't it? Hadoop. Okay. और Hadoop में जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या होगा? MapReduce. ठीक है. Now the question is, in data center, do you have 1000 machine or more than that? So the answer is more than that. And suppose I want say more than, I want a software which can take care of the whole data center. Then I'm going to use Mesos. इसको डेटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, इसको सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिस्टम्स. इसको डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, और इसको डेटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो. ठीक है, यहां तक के ठीक है. However, we are not talking about one data center. We are talking about 3 different data centers in 3 different geolocation. उसके लिए मुझको चाहिए कोई सॉफ्टवेयर जो उन 3 डिफरेंट डेटा सेंटर्स के अंदर प्रोसेसिंग करके दे. अब समझ में आया है ना. अब इसका नाम क्लाउडेरा SDX रखता है, लेकिन इसका जनरल नाम जो है, ओपन सोर्स नाम क्या है? क्यूबरनेटिस. सो अब डिफरेंस समझ में आया. मल्टी डेटा सेंटर operating system. Isn't that amazing? Not one region, multi-region we are talking about. Multi-region. Multi-region with multi-governance, with multi-organizations, with multi-resources. अब इतना याद रहेगा, इतना याद रखना पड़ेगा. पहले ही बोल देता हूं. Okay, so now you know infrastructure as a service and the problems of infrastructure as a service and what organizations are looking for to pay you heavily. Okay, now what we'll do is, why the name is Kubernetes, we'll see that later. For now, वो history, वो इजाद कैसे हुआ, वो तो, that is because of Google. Okay, because the problem existed for Google. Google is around the globe. So say for example, you want to search something. तो गूगल को पता है कि तुम्हारा आईपी से कि तुम इंडिया में हो, तो तुमको रिजल्ट इंडिया के ही देगा वो. और जो लोग यूएस में हैं उनको यूएस का रिजल्ट आता है. तो वो गूगल ऐसे कर कैसे लेता है? Isn't it? So everything is running in a container which you can't see. Okay, now the question is, हम लोगों ने infrastructure as a service वाला फंडा हो गया. Okay, now the question is about, yesterday we discussed community cloud and enterprise cloud. Now today you tell me, today we are not talking about community cloud at all. We are only talking about enterprise cloud.
ओके, इसके फायदे बताओ। पहला फायदा, यू कैन गो ग्लोबल विद इन 1 year's SLA, which is once upon a time impossible. पहले इसको 15-20 साल लगते थे ग्लोबल बनने के लिए, 15-20 साल। यस, आज किसी कंपनी को ग्लोबल जाना है 1 साल में ग्लोबल। उसके बाद सी निखिल इज सेइंग रिलायबल, स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, है ना? नहीं, इट इज ऑटो स्केलेबल। एक है स्केलेबल, एक है ऑटो स्केलेबल। मतलब मुझे मेरा मन किया कि 3 दिन का बिलियन डे रखता हूं, और बिलियन डे में बिलियन लोग आएंगे, या बिलियन क्लिक्स आएगी, या बिलियन प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब बहुत कुछ हो सकता है बिलियन, isn't it? Now the question is how many people will come? तो उन लोगों ने बोला भाई अपनी आबादी बिलियन की है तो बहुत ज्यादा लोग आएंगे, वी हैव नेम्ड इट बिलियन डे, सो मेक श्योर ऑल द सर्वर्स आर अप एंड रनिंग। तो से फॉर फ्राइडे को बिलियन डे स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ी वैसे वैसे सर्वर चालू हो गए, जैसे जैसे ट्रैफिक घटी वैसे वैसे सर्वर भी घट गए। ऑटोमेटिकली स्केलिंग हो रही है, ऊपर भी और नीचे भी, स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। अब मेरे पास पैसे कितने हैं? 500 सर्वर के, और मैंने सर्वर कितने ऑर्डर किए? 50,000। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, औकात के बाहर। कैन यू डू दैट? यस यू कैन। वेलकम टू क्लाउड। और उसके बाद मंडे मॉर्निंग 12:01, बिलियन डे खत्म, सर्वर सारे के सारे बंद। मैं कितने दिन का पैसा भरूंगा? सिर्फ 3 दिन के। एंजॉय 3 days मनी, है ना? तुमने जूम कार से कार लिया, 3 दिन घूमे फिरे, ऐश किए, और उसके बाद वापस कर दिया, यू आर डन। अब वो कार को कुछ भी हो जाए अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, isn't it? Okay, so now you understood what is the benefit of auto scaling. Pay as you go. Very nice, that is correct. Pay as you go का मतलब क्या होता है? जितना खर्चा किया उतना पैसा देगा। मतलब you only have to pay for what you have used. You do not have to pay for capex and opex. Do you have to? नहीं नहीं नहीं। तो ये पे एज यू गो क्या है? ना केपेक्स है ना ओपेक्स है, उससे भी कम। गेटिंग द पॉइंट? तो यू कैन यूटिलाइज योर एक्चुअल मनी इन समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दैट मनी in the data center. Okay, अब ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है अप एंड ऑटो स्केल। You can scale up and you can scale down, which means you can throw a billion day instantly. Okay, उसके बाद और क्या है? तुमको पता है जो सर्विस, any service, I want a service, for example blockchain, robotics, call center, analytics। तो ये सर्विसेज के लिए मुझको डेटा सेंटर में पहले तो बहुत सारे डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे। उसके बाद वो लोग मेरा सॉफ्टवेयर रेडी करेंगे, 6 महीना 1 साल का SLA देंगे झूठ बोल के, और 1.5 से 2 साल 3 साल में वो मेरा सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, और उसके बाद उसको मैं अप एंड रनिंग करूंगा, और उसके बाद मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है, isn't it?
और बाय द टाइम मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है मार्केट में कुछ नया आ चुका होता है। सो मार्केट में जैसे ही कुछ नया आया फिर मुझको उस नए चीज के पीछे पड़ना पड़ता है, उस पर खर्चा करो। लेकिन अगर सपोज, तो इसके लिए ना एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। से फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तुम्हारे काम की एग्जाम्पल है, यू कैन यूज दिस इन इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। से फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने ना स्टोरेज के लिए, फॉर योर स्टोरेज तुमने बोला कि आई एम गोइंग टू स्टोर माई डेटा इन ऑन S3। S3 क्या है? इट इज एन एंटरप्राइज स्टोरेज provided by AWS. Okay, everyone knows that. Some people don't know. Now they know कि it is an enterprise storage. तो इसके ऊपर मैंने क्या रखा है? Data, isn't it? So the question arises, I want to process this data. So what will I use? I will use a service. तो एक तो मैंने enterprise storage का service use किया, enterprise। तो अगर स्टोरेज मुझको बनाना है तो पहले मैं किससे लेता था? EMC स्क्वायर, NetApp, IBM, Quantum। तो मुझको अलग अलग टाइप के स्टोरेज लगते थे, SAN, NAS, DAS, tape। Getting the point? But now I'm using a storage called S3 to store my data। तो मेरा एक प्रॉब्लम एक सर्विस से सॉल्व हो गया। I don't have to worry about so many companies and so many technologies. I just have to worry about one company and one technology. Makes life easy? Yes. Point number 2, इसको मुझको प्रोसेस करना है। So when I want to process, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना, तुमको प्रोसेस करने के लिए क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर लगेगा। और तुमको क्या लगेगा? CPU लगेगा, रैम लगेगा, नेटवर्क लगेगा, और तुमको ब्लॉक स्टोरेज भी लगेगा। अभी ये जो स्टोरेज है कौन सा स्टोरेज है? ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? यू विल सी दैट इन द कमिंग सेशन, S3 वाला सेशन। बट दिस इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज। We are looking for a block storage to process data, है ना? EBS, EFS। So I got the storage without building any। अच्छा, are they enterprise grade? तो उसका आंसर है yes, they are enterprise grade. In fact, they are production grade from day one। आया समझ में? दे आर प्रोडक्शन ग्रेड। तो मैंने डेटा को क्या किया? प्रोसेस किया। किससे किया? EC2 से किया। Say for an example, after the processing is done, I want some more services, like I want to run some SQL statements, so I will use a service called Athena। मुझको विजुअलाइज करना है, I will use QuickSight। मुझको डेटाबेस चाहिए, I will use RDS। तुमको शायद रियलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्विक साइट की जगह अगर मैंने टैबल्यू लिया तो मुझको $1,000 फॉर वन यूजर, सॉरी $2,000 फॉर वन यूजर फॉर 1 ईयर देना पड़ेगा। क्विक साइट में आई डोंट हैव टू डू दैट, आई डोंट हैव टू कमिट फॉर एनीथिंग। RDS में ओरेकल को मुझको लाइसेंस का पैसा देना पड़ेगा, मेन फ्रेम्स खरीदना पड़ेगा। एथना के लिए मुझको डेवलपर बिठा के एथना जैसा प्रोडक्ट रेडी करवाना पड़ेगा, ओनली देन आई विल बी एबल टू यूज इट। बट हियर आई कैन गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंस्टेंटली। तो मेरा जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर मुझको क्या मिल रहा है? Am I getting fully managed services? So the answer is yes, of course. But mind well, which services are you getting? You are getting relevant services,
तुमको वो इररेलेवेंट सर्विसेज मिल रही है क्या? अभी मार्केट में ब्लॉकचेन चल रहा है तो तुमको ब्लॉकचेन मिलेगा, रोबोटिक्स चल रहा है रोबोटिक मिलेगा, मशीन लर्निंग चल रहा है मशीन लर्निंग मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे RDS में रख दिया, तो दिस इज माई डिस्टिल्ड डेटा. ओके, एग्जाम्पल, I kept some data in DynamoDB database. Okay, and now you are telling me run a machine learning algorithm. तो मुझको ML के लिए जो algorithm चाहिए, तो 18 algorithms are given to you absolutely free of cost. How it works आगे जाके हम लोग देखने वाले, don't worry. Absolutely free, 18 algorithm. अब ये अगर मुझको 18 algorithm बनवाना है मेरे अपने डेटा साइंटिस्ट से, तो एक अल्गोरिदम की कीमत होगी कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़. जो सबसे कम सस्ते वाला होगा ना वो 1 करोड़ का होगा. तो सबकी अगर मैंने कीमत 1 करोड़ भी लगा दिया ना, तो मिनिमम कॉस्ट दैट इट विल कॉस्ट मी इफ आई डू इट इन हाउस विल बी 18 करोड़. लेकिन उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर अल्गोरिदम. तो मेरा जो डेवलपर है वो बोलेगा actually we have less data, that's the reason sir, it is only 51% accurate. तो मैं तुमको बोलता हूं ये बाइक है 51% you will be alive when you ride the bike. हाथ लगाते क्या इसी बाइक को? नहीं ना. तुमको कौन सी बाइक लगती है अच्छी? एंटरप्राइज ग्रेड होंडा. ये चाबी लगाया बटन दबाया प्रोडक्शन ग्रेड रोड के ऊपर ऑन रोड, बटन दबाया घुमन फिरिंग एंड कमिंग. ये अच्छा लगता क्या? शोरूम में उसने तुमको बोल दिया 51% चांसेस है सर आप वापस आएंगे. ऐसा तो KTM वाला ही बोल सकता है खाली. KTM की बाइक की चाबी दिया, 51% चांसेस सर यू विल बी रिटर्निंग बैक होम, विश यू ऑल द बेस्ट. चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. हमको क्या लगता? हमको लगता 99.99999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना. हमको क्या लगता? 11 9 ड्यूरेबिलिटी. स्प्लेंडर चलाने से अच्छा पैदल चलो. कोई बाइक है वो, जवान आदमी भी उसको लगेगा कि बुढ़ा हो गया मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हाँ लिटरली, कभी मैं सोचता हूँ कभी कभी यार, स्प्लेंडर बेचारे जवान के ऊपर अगर अत्याचार करना है तो उसको दे दो वो बाइक. वो अपनी और एक है ना हीरो वाली एक बाइक है, इंडियाज नंबर 1. चलती ही नहीं है. अजीब है. बट पीपल आर हैप्पी विद दैट, सो वी आर आल्सो हैप्पी, डोंट वरी. तो अभी ये फंडा समझ में 11 9 ड्यूरेबिलिटी इज व्हाट दे वांट, and they are getting all this fully managed services at their disposal without any extra cost. और ये सर्विसेज कौन सी होती है? रेलेवेंट होती है कि इररेलेवेंट? दे आर ऑल रेलेवेंट सर्विसेज. रेलेवेंट टू व्हाट? रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट, what they're doing right now, which they can't develop even if they want to. So can they stay ahead with competition? So relevant का मतलब है yes they can stay ahead in competition. कॉम्पिटिटर के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ले तेरे पास उससे अच्छी आ सकती है. करना क्या है? क्लाउड में आना है, दैट्स इट. तो अगर किसी इंटरव्यू में तुमको पूछ लिया कि टेल मी व्हाट इज some benefits that you can get from cloud, तो तुमको बोलना है कि you can go global in lesser SLA. It is a pay as you go model. It is auto scalable model. It is fully managed services. और क्या और भी बहुत कुछ है, याद नहीं आ रहा है ना. ड्यूरिंग द कोर्स इट विल कम. बट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये हमको मालूम होना चाहिए क्लाउड के बारे में. इसका जो कॉस्ट है ना वो भी लो कॉस्ट है, याद रखना.
and security. Yeah, most people they talk about security. It has, चलो वो तो देख ही लो तुम लोग यार, तुमको दो चीजें देख लेना चाहिए, isn't it? Yes, I think we'll do is we'll jump to Safari because Chrome का भरोसा नहीं. Okay. AWS AWS compliance, ये कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना. See here, everything about AWS security, cloud security का है ना, तो इसमें compliances जितने भी होते हैं ना, they have mentioned almost all of them. जैसे HIPAA compliance, this healthcare. अभी लोगों ने ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया है. See, this is the compliance that we are talking about. अब यहाँ पे है ना FERPA compliance on AWS and this compliance and that compliance, दुनिया भर के open data AWS. There is so many compliances. You can't even think. They have done everything. अगर तुम्हारा खुद का data center है, तुम खुद नहीं कर पाओगे. इतने सारे compliance है इनके पास. Let's see. This is third party. ये देखो ये आया list. देख रहा है, इसमें से कुछ कंप्लायंस तुमको पता होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट. तो अभी तो चलो इट्स ओके, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, बट लेटर ऑन यू विल कम टू नो. सपोज यू आर डूइंग अ हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट, देन यू विल हैव टू नो व्हाट इज HIPAA compliance. If you are doing some other project, then you have to know what is that project all about. Okay, now let's go to AWS 27K ISO. अब देखो तुम्हारा नसीब, you can actually see the certificate of 27K, है ना, and this is valid until November. दिख रहा है तुमको एक्सपायरी डेट. तो जिन लोगों ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया, सिर्फ उन लोगों ने एक जमाने में सर्टिफिकेट देखा था. आज तुम दे सकते हो. You can actually see this. ये जो बंदा है ना जतिन, इसको एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे देखा है सेगल को. When there is a AWS summit, he comes there to deliver lectures. Now I am scrolling to show you something, and then I will ask you a simple question. अब यहाँ पे तुमको बहुत सारे countries दिख रही होगी, कि नहीं? Canada and this that all. So let's come back to India. Japan. ऊपर गया क्या? हाँ इधर है. ये दिख रहा है तुमको? Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, New Delhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You tell me, what does that mean? Ah, 6 availability zones in India. That's what it means. तो ग्लोबल का मतलब देख रहे हो तुम कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है? AWS edge locations in blah blah blah. कितने सारे? See, so many locations they have the availability zones. And then we were talking about services. So अभी आज की तारीख में ये सब लेटेस्ट है कि नहीं? AR and VR, blockchain, then customer enablement, machine learning, Internet of Things, then what do you call it, quantum technologies, robotics, satellite. ये सब कुछ यहाँ पे available है data center के अंदर, which means anybody who actually wants to get in technology, it's much easier for them to do it now. खाली उसके कुछ basic concepts होते हैं जो हमको पता नहीं होते, जिसकी वजह से वो difficult लगती है. That's the reason I took this concept वाला white board, black board वाला जो concept है ना, वहीं पे clear होता है वो. You just can't do that anywhere else because PowerPoint presentation में कुछ मजा नहीं आता है. I can't go here and there for explanation. You have to stick to that presentation which you must have created somewhere 10 years back. But in this, you can go according to what's happening right now.
तो ये जो services है fully managed है. So you can jump from one data center to another data center. There is a list of regions over here. List, complete list. अब ये पॉइंट तुमको समझ में आ गया है, खाली इसको इसके जो टेक्निकल टर्म्स है इसको याद रखना है, और इसके बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट्स है which we are going to discuss gradually. So right now it's already 6 o'clock. So wish you all the best and take care. See you next week. Make sure you people are practicing Linux. More time is given to practice Linux.